Let food be thy medicine shall be thy food. Greetings of the day, everyone. I am Yashasvi Jain, your host for the day, as we discuss about the COVID diet with our guest of the day. Before we start, I would like to tell you about the eminent personality amongst us who has been awarded with India Star Personality Award 2020. So, ladies and gentlemen, amongst your virtual applause, I would like to welcome Dr. N. Ganesh, sir, head and senior Good afternoon. head and senior scientist at the Department of Research at Jawaharlal Nehru Cancer Hospital and Research Center of Kanyakumari and Tamil Nadu, a PhD holder in anatomy medicine and a consultant oncogenetist. We welcome you, sir. Thank you. Can I start? Yes, sir. Okay. Good afternoon to the August gathering. And thank you, Arif. You always promote me and made me on the platform where I can make other to understand the health issues and their remedies. COVID-19, COVID-19 is nothing new to the world now. It is pandemic. Everyone knows. It started in December 2019 and still it is going ahead. I don't know how many we appreciate the vaccines, but I don't appreciate the vaccines. So today I'm not going to talk about vaccines, but we have some vaccines inside the our body, autoimmune system, and we can generate some through diet. So I'm going to talk about little bit of the history of it and then the diet. And my request to everyone कि प्लीज अपने दिमाग को खोल के सुने, बहुत जरूरी है. मैं खुद कोविड-19 इन्फेक्टेड था. बहुत ड्रास्टिकली मेरा डैमेज था, बट मैंने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाया, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लिया. मैं घर में होम क्वारंटाइन होके अपने आप को ठीक किया हूँ. I'll tell you what are the diet I took, and this diet has been taken by thousands of my COVID positive known family members, friends, doctors, patients, and their relatives. So I'm going to talk about the immune therapeutic diet, which can enhances the immunity. And the pictures, these all are immune enhancing diets are there. But still, I feel like we should know why we required and why not. What are the things not required during COVID infections? And like if you talk about the immune modulated diet, is not is today's era, but it's ages. Like almost 3,000 years पहले भी लोग जो diet लेते थे, they have a very perfect diet. But now the scientists had been defined, publications has been done, so people are come to know about the scientific aspects of diet. Otherwise, nobody bothers. उस जमाने में इतना pandemic होता नहीं था, था भी तो it is going to repair themselves. These are the very simple. Government of India, government of different states and countries had already defined कि water nutrition has to be taken, good number of lemon yellow color fruits and vegetables, and the edible items which can provide your vitamin C, and multi-grain diet is required. You should not take chicken and meat, but you can take a fish and egg. And herbal medication has been, I'll tell you what are the things has been made. But we had promoted in 2019, 15th of December. We never thought कि भोपाल में pandemic आएगा, and we are very reluctantly stayed. But it was very painful, when the disease had came, and we could not able to do much work with this. And to be honest, we never thought जब हम ये launch कर रहे थे herbal tea, हमें मालूम ही नहीं था कि मतलब कुछ miracle हो जाएगा. और हम काफी दिनों से ये काम कर रहे हैं. We had promoted our tea in patient radiotherapy patient and chemotherapy induced toxicity patient. So over the period of 1.5 years, we have got the data and we found that कि बहुत ज्यादा कम हो गया है load, toxicity load, immunity बढ़ गई है. तो एक डाटा है 20 patient का. I'll going to share that. And balanced diet have to be planned well in advance. अभी ये COVID-19 था, next year क्या आएगा, nobody knows. Whether it is natural made virus or pathogens, whether it is human made artificially synthesized virus and pathogens, nobody knows. But we should be get ready to boost our immunity.
And for this, I'm thankful to Arib again, once again, the team, whole team, the NGO, what he runs, and he associated with that. And I welcome for this talk again. And let me have some, we know this mumps and SARS, ये सब बातें करने से कोई मतलब नहीं. Symptoms में asymptomatic था, but symptom is very common. Fever is there. लेकिन मेरे भोपाल में fever history बहुत कम रहा लोगों को. तो अलग अलग पंजाब में, दिल्ली में फीवर हिस्ट्री बहुत था, साउथ में बहुत ज्यादा कॉमन था. मे बी सम बिकॉज ऑफ द फिनोटाइपिक ओरिजिन ऑफ देयर ब्रीड्स. एंड कफ इज वेरी कॉमन. अभी ठंड आ गया तो कफ एंड कोल्ड रहता ही है. और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज वेरी कॉमन इन द pulmonary diseases like pneumonia, asthma, allergic hay fever, and some cases of cancer, tuberculosis. इसमें भी shortness of breath होता है. So how to find this all is very difficult. So I'm not going to talk about the signs and symptoms, but to be honest, asymptomatic is more dangerous than the symptoms. So people catch on the symptoms on day one and get the treatment done, but you won't believe कि जो asymptomatic होता है वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करके चलता है. I'll tell you my story of asymptomatic, how I define, how we got indicated कि मेरे को हो सकता है, and कैसे मैंने ये किया. सिम्टम कोविड-19 का ये यूएस FDA अप्रूव्ड सिम्टम्स. किसी ने बोला स्वेट, ये तो मेरे को काम करते हुए स्वेटिंग होता है. कफ में एलर्जी हो, कुछ किसी भी एलर्जी से हो सकता है. दौड़ के चल के आऊंगा तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है. हेडेक स्ट्रेस इंड्यूस है. मम्मी का स्ट्रेस होता है, मम्मी काम के लिए बोलती है तो उसका स्ट्रेस, टीचर काम के लिए बोलती है उसका स्ट्रेस, बॉस काम के लिए बोलता है उसका स्ट्रेस. तो हेडेक सम ऑफ द अदर वे वी गेट, है ना. और ठंड चालू हो गया तो ठंड तो लगेगा, लेकिन बहुत अलग अलग है ये. इसका मीनिंग इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू पुट. इट इज फीवर इज एटिपिकल फीवर. जॉइंट्स पेन होगा, फीवर रिकॉर्ड नहीं होता है. फीवर फिनोटिपिकली आपको टच करने से रिकॉर्ड नहीं होगा, बट व्हेन यू एग्जामिन थ्रू थर्मोमीटर देन इट विल रिकॉर्ड यस फीवर इज देयर, है ना. तो चिल मतलब शिवरिंग वाला चिल. अच्छा था ठंड लग के, जो मलेरिया में, डेंगू में, बाकी इन्फेक्शियस वायरल डिसीज में होता है. तो दिस वेरी कॉमन सिम्टम्स. तो लेट वी हैव सम, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हैज डिफाइंड कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए. मम्मीज रेसिपी, अदरक, जिंजर, दिस टर्मरिक बहुत अच्छा होता है. किसी ने बोला येलो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वेजिटेबल लेना चाहिए, तो वी हैड स्टार्टेड दैट. लेकिन मैं जो बताने जाऊंगा इट्स टोटली डिफरेंट. माय डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें होममेड रेमेडी कैसे करनी चाहिए. अरीब का भी कंसेप्ट यही था बेचारा. ऑलमोस्ट 3 मंथ से मेरे को बोल रहा है सर प्लीज प्लान योर डेज, एंड आई एम सॉरी आई गॉट डिलेड, बट दिस डे इज फॉर यू. एंड लेट मी सी व्हाट एग्जैक्टली वी डिड. दिस इज द फर्स्ट थिंग. दिस इज द ओनली फर्स्ट थिंग आई डिफाइन होल वर्ल्ड. मेरे को जहां जहां तक मैसेज करना था मैंने वहां तक ये पर्टिकुलर ड्रग को मैसेज किया. प्लीज आप लोग इसको नोट कर लें. ये छोटा मोटा ड्रग नहीं है. इट इज अ वंडर ड्रग फॉर हेल्थ. सोचा भी नहीं होगा जिसने इसे फॉर्मुलेट किया है. नाट्य वैद्यम. नाट्य वैद्यम मतलब नाट्य इज गांव, वैद्यम इज मेडिकेशन. जो गांव का, केरला तमिलनाडु के गांव में प्रचलित, आज से नहीं हजारों सालों से प्रचलित जो दवाइयां जड़ी बूटी देते थे बीमारियों में, बुखार में, टाइफाइड में, जॉइंटिस में, मलेरिया में, नाउ डेंगू एंड सो मेनी अदर एलिमेंट्स, इवन कैंसर, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल अस्थमा, बहुत सारे डिफरेंट डिसीज में पीपल हैज बीन गिवन दिस. बट नोबडी नोस कि बॉटलिंग होके इतना फेमस बन जाएगा और ये रेमेडी बन जाएगा. तो पहला रेमेडी मेरा नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है केरला और तमिलनाडु के ट्राइबल ऋषि मुनियों का, जिनने एजेस से काम किया. एंड अल्टीमेटली इट हैज बीन वर्क फॉर द सोसाइटी. सेकेंडली इसमें वो सब है जो हमारी मम्मी, नानी, दादी, दीदी, घर के बुजुर्ग लोग हमें बारिश से गीला होके आते हैं तो हमें देते हैं. बट ये ब्रेथ इजी नाम इसलिए रखा है कि रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए बनाया गया. पंकज कस्तूरी नाम है इसका. ब्रेथ इजी इसका फॉर्मूला है और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे, सब लिस्टेड है उसमें. मैंने जिन जिन को दिया उनका अस्थमा ठीक हो गया, जिन जिन को दिया उनका निमोनाइटिस ठीक हो गया, जिन जिन को दिया उनको एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसीज ठीक हो गया. कोविड में सार्थक हुआ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक रोकने के लिए, मतलब बहुत सार्थक हुआ. एंड दिस इज अ वंडरफुल ड्रग. प्लीज ट्राई टू टेक दिस. प्लीज ट्राई टू टेक दिस.
down 15 age, pinch of drug every day, thrice a day, morning, आफ्टरनून एंड इवनिंग आप ले लें। इसको पीना नहीं है, इसको चबाना नहीं है, इसको सॉलो नहीं करना है, इसको मुंह में रख दें। इट कंटेन अ डेट पाम विच इज डाइल्यूट विद अ सलाइवा, डिस्पर्स हो जाता है पूरे सिस्टम में, म्यूकोसल लाइनिंग में, goes to the larynx pharynx and stay for there to request the bacteria or virus to go off। ठीक है, एंड ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रग है। मेरे मॉम को 25-30 साल से अस्थमा था, मैंने 3 साल पहले चालू किया एंड आज तक तो नहीं आया। लेट्स होप, क्रॉस फिंगर्स की आगे सर्दियों में नहीं है, लेकिन ये प्लीज लीजिए। बॉम्बे दिल्ली में इतना फेमस हो गया है, मेरे दोस्तों ने से इतना अच्छा मार्केट नहीं किया, बट दे हैड गिवन अ प्रोपेगेंडा ऑफ दिस ड्रग। सो इट्स अ वंडरफुल ड्रग, आप लोग को सबको लेना चाहिए। पंकज कस्तूरी नॉर्मल दिन में भी लेना चाहिए, इम्यूनिटी को एनहांस करता है, ऑटो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, प्लस इन एलर्जी लिस्ट आउट डिसीज उनसे रिलीफ दिलाता है। तो वी मस्ट टेक दिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट कि इन्हें आयुष को हेल्प लिया, आयुष से काढ़ा बनवाया। आयुष काढ़ा इज वेरी फेमस एंड डाबर ने काढ़ा बनाया, सबने अपना अपना काढ़ा बना के भेजा। तो दे टोल्ड कि ये सब लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, पानी लेना चाहिए, स्लीप अच्छे से लेना चाहिए। लेकिन मैं तो 3-2 घंटे से 2.5 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा कभी सोया नहीं। लेकिन मेरे को जो डिसीज था मैं बताऊंगा हाउ इट इन्फेक्टेड मी एंड हाउ आई गेट रिड। एक्सरसाइज करना चाहिए, मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता हूँ, फिर भी आई रिपेयर्ड माई सेल्फ, है ना। पानी ऑब्वियसली मैं बाकी टाइम में भी आई टोल्ड, इफ यू रिमेम्बर अरे मैं आपके एलपीयू व्हेन आई लैंडेड आई टोल्ड हेल ऑफ टाइम कि adult must take 15 to 20 glasses of water a day। तो नथिंग इज बिग इन टेकिंग वाटर, है ना। मस्ती मस्ती में आधा आधा ग्लास भी पी लोगे तो पूरे दिन का काम हो जाएगा। आयुर्वेद साइंस ने बोला नहीं आपको ये या हाँ हाँ, बहुत बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। रीनल स्टोन, रीनल सिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर, इंटेस्टाइनल ट्यूमर, ब्रेन में लीजन्स, कुछ भी है, काफी ज्यादा मेंटेन करता है। इट कंटेन गुड नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैपेसिटी को मेंटेन करता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को घुसने नहीं देता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने नहीं देता है। ग्लूटाथाइन जो लीवर में बनता है, एंटीऑक्सीडेंट, सेल्फ एंटीऑक्सीडेंट्स हर मैमेलियन सेल्स में वो मेंटेन करके चलता है। लिपिड पेरोक्साइड जो नोटोरियस मिलिटेंट है बॉडी में, उसको आने नहीं देता है। तो इवन यूनानी हैज आल्सो हैड टोल्ड, इन्हें डेट्स के ऊपर काफी काम किया यूनानी साइंस ने। बट आई फील ये तो सिग्नेचर है, गवर्नमेंट ने बोला लेना, कितने लोग लेते हैं मालूम नहीं, लेकिन अपन को कुछ और भी लेना है। ठीक है, ये पहला मेरा फॉर्मुलेशन बहुत लेमैन के लिए है। मैं आपको आपको रियली अपने दिल से बता रहा हूँ, ये ड्रग अपने आप में बहुत अच्छा है। ये मदन मोह की चाय, ये मैंने 2019 के 15 दिसंबर को उनके बर्थडे वाले दिन, वो नहीं रहे हमारे चेयरमैन साहब, मदन मोहन नाम था उनका, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हर साल करते हैं हम। तो दिस दैट ईयर लास्ट ईयर वी डिफाइन कि ये करना, इस साल का एजेंडा अलग है हमारा। ठीक है, बट रसवास दे रहे हैं हम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड मैं आपको एक मैगजीन भी दिखाऊंगा जिसमें हमने ये किया है। इनके नाम दिए हैं हमने अलग अलग। और reinvigorate का मीनिंग होता है द प्लेस ऑफ रिजुनेशन। रिजुनेशन ऑफ व्हाट? Our normal cells to become a healthier cells, a damaged cells to become a healthier cells. Our immune system must be enhanced. This is the place of rejuvenation. Rejuvenation कहाँ होगा? Inside होगा। एक आत्मा का रिजुनेशन होता है योगा क्रिया से, लेकिन ये योगा क्रिया नहीं है, परंतु ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिसमें सेल अपने आप में म्यूटेटेड सेल्स भी ठीक हो जाते हैं। और ये हमारा टेस्टेड है, अभी आपको डाटा भी दिखाऊंगा इसके बारे में। तो पहला चाय बनाया है मैंने मेस्पराइज ऑल स्पाइसी। मेस्पराइज इज किसी को मन को मोह लेना। तो ये मेरे मदन मोहन जोशी साहब थे जो चेयरमैन, उनके नाम से चाय है। इसमें बे लीफ यूज किया है, सिनेमन, बे लीफ होता है तेज पत्ता, सिनेमन होता है दालचीनी, ऑल स्पाइस लीफ होता है। मेरे अंकल ने, कजिन अंकल ने इसको फॉर्मुलेट किया है, पांचों इंग्रेडिएंट जिसमें दालचीनी, तेज पत्ता, मीठा इलायची, डोडा इलायची, फिर लौंग, है ना, जायफल, ये पांचों को इनकॉर्पोरेट करके एक पेड़ को डेवलप किया है केरला में, जिसको नाम दे दिया ऑल स्पाइस। इसका एक पत्ता काफी है डाइट के लिए, दाल के लिए 5-6 लोग आराम से दे कैन नाइसली दे गेट द स्पाइसी इंडिजिनस content of the system in our body. Jaggery is not a normal jaggery, it's a palm jaggery. Palm jaggery is what? खजूर का गुड़, या तो आपका
पाम जो ताड़ होता है उसका, ये नॉर्मल शुगर केन का नहीं है. शुगर केन you can take much in diabetic patient, but this is you can take in diabetic patient because it contain hell of ingredients which is antioxidant in nature और naturally cook करके बना है. ये sun cooked है, this is not a heat cooked, तो flame cooked नहीं है ये जैगरी. ये हीट कुक्ड है और कोकोनट के शेल में बनता है एंड इट इज वेरी इजीली अवेलेबल इन साउथ इंडिया. अब पूरे इंडिया में अवेलेबल है, तो वन मस्ट टेक दिस ऑल. कार्डमम अपना इलायची है, लेकिन कार्डमम हम फर्टाइल एज ग्रुप के मेल को नहीं देते. ये इनफर्टिलिटी ले आता है, तो हम जो पेशेंट हमारा फर्टाइल एज ग्रुप है हम उसमें ये ऐड नहीं करते. वी ऐड द अदर ऑब्जेक्ट्स. फाइन. और दूसरा है हमारा होप ऑफ ऑरेंज कुरकुमिन चाय. होप ऑफ ऑरेंज कुरकुमिन चाय इज नथिंग एल्स. इट इज ऑरेंज रिंड प्लस टेंडर हल्दी जो हमारे हैं, और लाल मिश्री. लाल मिश्री कहाँ से मिला? फिर से अगेन पाम जैगरी जो था, जैगरी की जगह पाम शुगर बनता है, वो लाल रंग का निकलता है, थोड़ा ब्राउनिश पिंकिश कलर का, तो लाल मिश्री का नाम होता है. मार्केट में जाएंगे तो विल गेट दैट. तो ये व्हाइट मिश्री से ज्यादा अच्छा होता है. फाइन. होप मतलब आशा. हमारी चेयरमैन सर की वाइफ का नाम है आशा जोशी मैडम, वो अभी मेरी प्रेजेंट चेयरमैन है, तो उन्हीं के नाम से हमने होप ऑफ ऑरेंज कुरकुमिन डिफाइन किया. दूसरा उनकी डॉटर सीईओ है, उनका नाम है दिव्या पाराशर. दिव्या मतलब डिवाइन. तो डिवाइन पाम जैगरी इज वन ऑफ द बेस्ट टी एवर वी हैड सीन. हमने इसका ट्रायल कंप्लीट किया, जिसका डाटा मैं अभी दिखाऊंगा आपको. पाम जैगरी, सौंठ और काली मिर्च और कुछ नहीं, ना इसमें चाय पत्ती डलता है किसी में भी, ना कॉफी डलता है, बट यू फील लाइक यू आर ड्रिंकिंग ए कॉफी अदर टी. और जिनको भी हमने ऑफर किया, जैसे कि सर नींद आता है हमें अच्छे से, हमें गुस्सा नहीं आता, हम परेशान नहीं होते, हमारा जो डाइट है मेंटेन रहता है, हमें जो साइटोपिनिया सेल डैमेज होने का इशू आता था, हीमोग्लोबिन का इशू आता था, वो सब सॉल्व होता है. दूसरा पूरा स्टाफ 600-700 से ज्यादा स्टाफ है हमारे यहाँ, तो उनके नाम से जवाहर द होप ऑफ चाय बना है, जिसमें इंडियन बेसिल है हमारा, तुलसी, श्यामा तुलसी यूज किया है, कार्डमम यूज किया, लाल मिश्री यूज किया. अगेन कार्डमम मस्ट नॉट बी एडेड इन ए फर्टाइल मील. फाइन. और ये डाटा है, आप देखेंगे कि मैंने 20 केसेस में डाटा किया है, सभी केसेस में इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए. केवल लैरिंग्स में एक दो केसेस, 3 केसेस लैरिंग्स में तो अच्छा है, लेकिन एक इसोफेजियल कैंसर और 2 लैरिंग्स केसेस में कुछ हीमोग्लोबिन को कम कर दिया, इसने इतना अच्छा मेंटेन नहीं किया. बिफोर का डाटा है एंड आफ्टर इट बिकम 11.4 से था, तो इट बिकम 8, 11.4 था, तो इट बिकम 8.9. तो दिस इज व्हाट द इशू हैपेंड. अदरवाइज मेरे सभी केसेस में, जिनमें बकल मिकोजा, ओरल कैंसर, हमने कैसे बोला है उनको करने के लिए, रेडियोथेरेपी के बाहर हमने ये काउंटर बना के रखा है. जिन पेशेंट का प्लानिंग है उनका बीएमआई बीएस से कैलकुलेट होता है, और फिर उसके बाद लाइक वी डिफाइन कि 60 ml 50 ml देना है. पेशेंट को गुटकने नहीं बोलते हैं, सॉलो करने नहीं बोलते हैं. वी आस्क देम टू टेक अ सिप एंड कीप इट फॉर 30 सेकंड्स. मुंह में रखता है 30 सेकंड, 5 सेकंड रखता है, फिर सॉलो करता है. इसका मतलब है कि हम जो भी फ्रूट जूस लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी लेते हैं लिक्विड, उसको मुंह में कुछ देर रखने से हार्ट में इट गोज ट्रेवल्स वेरी फास्ट विद इन द सेकंड ऑफ 20 to 5 seconds. Fine, sometimes 30 seconds takes. But when we swallow it and keep it inside the stomach, it takes almost, you won't believe it, it takes say roughly around 130 to 130 hours to 2 hours, and it takes hell of time. और मुश्किल से वो 5% शरीर में जाता है, बाकी डिफिकेट हो जाता है. तो व्हाट द फन, इतना महंगा चीज खाओ और उसके बाद शरीर में लगे भी नहीं. और आप लोग जो सिरप पीते हो, मैं आपको बता दूं, बहुत लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस एनजीओ के थ्रू लेमन लोगों को ही हमें ये मैसेज देना. अरीब, आई एम राइट? अरीब, मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैसेजेस लोगों तक जाना चाहिए, है ना. बहुत लोग होंगे जिनको इंग्लिश नहीं मालूम है ना. तो कुछ चीजें हैं मैं जो हिंदी में बोलना पसंद करूंगा. ठीक. हम जो सिरप लेते हैं, कफ सिरप लेते हैं, एक्सपोर्टेरेंट लेते हैं, वो डॉक्टर भी नहीं बताता, तो बस इतना बोलता है शेक के दे देना, पिला देना, 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1.5 चम्मच हम लेते हैं और गटक लेते हैं अंदर. ही नहीं करना चाहिए, हमेशा उसे होल्ड करना चाहिए, गले में होल्ड करके रखें. प्रॉब्लम वहां पर है, पेट में प्रॉब्लम नहीं है. जब तक पेट से सिस्टम में जाएगा 1.5-2 घंटा लगेगा, और सर्दी जुकाम आपका जाएगा नहीं, खांसी भी नहीं जाने वाला. मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी चीज लेते हो आप मुंह में रखिए उसे कुछ सेकंड, 5 सेकंड तो रखिए, फिर सॉलो कीजिए, आपका इफेक्ट. यही चाय का कंसेप्ट भी ऐसे था. अपने पाम, डिवाइन पाम जैगरी बनाया हमने, दिव्या मैडम के नाम का चाय था, और अभी तो मोर देन 150 केसेस कंप्लीट कर लिए हमने. 5 विजिट्स इनके थे, इंटरवल विजिट्स.
5 विजिट के हमने ये डाटा लिए हैं, मतलब वो आते हैं 21 दिन के लिए, 24 दिन के लिए, 60 दिन के रेडियोथेरेपी लेने, उनके 5 विजिट का डाटा हमने शो किया है। अभी फाइनल डाटा इज अबाउट टू पब्लिश, दैट्स वो डाटा इतना आ नहीं सकता। 20 डाटा रेंडमाइज नहीं है, स्टार्टिंग के 20 है। आप ये मत सोचिएगा मैंने सेलेक्ट करके डाटा दिया, ये स्टार्टिंग के हैं। आप कभी भी आएंगे तो मैं इनका डाटा भी दिखा दूंगा, इट इज ऑल मेंटेन। तो आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के दौरान में हमारा कोशिका जो सेल होता है वो डैमेज होता है, लीवर सेल भी डैमेज होता है, किडनी सेल भी डैमेज। तो हमने ये दो ऑर्गन को लिया। यकीन मानिए आप देखेंगे कहीं पर भी ओटीपीटी लेवल, एसजीओटी, एसजीपीटी जो हमारा लेवल होता है, जो लीवर को दर्शाता है कि वो डैमेज हो रहा है कि नहीं, वो काउंट अच्छे से मेंटेन है। ऐसी क्रिएटिनिन भी और यूरिक एसिड भी, यूरिया भी हमारा मेंटेन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल फेलियर में चले जाता है, लीवर फेलियर में पेशेंट चले जाता है, इसलिए रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी टॉक्सिन्स होता है बॉडी में, तो उसको भी मेंटेन करके चला है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डाटा व्हाट वी गॉट साइंटिफिकली अप्रूव। ये उसके स्मीयर बनाए हुए हमने, ठीक है। ये आप देखेंगे नीचे वाला लेयर है रिपेयर मैकेनिज्म, ऊपर ट्यूमर आपको दिख रहे हैं, है ना। तो नीचे वाला जो डाटा है वो इज रिपेयर, और आप ऊपर देखेंगे जिसमें सेल दिखाया है, तो नॉर्मल सेल्स जो नहीं, ये इंड्यूस रेडियोथेरेपी सेल डैमेज है। आप देखेंगे उसमें छोटा सेल है, दाने दाने टाइप का, तो वो डीएनए डैमेज आपको दर्शाता है। इट शोज द इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ डीएनए ब्रेक, किसमें, जिनको रेडियोथेरेपी हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा नीचे वाला 2 सेल है आप देखेंगे, एक सिंगल डॉट है, वो न्यूक्लियस है, केंद्र बिंदु है सेल का, कोशिका का। बाकी साइटोप्लाज्म देयर इज नो स्मॉल डॉट्स, मतलब यहाँ पर डीएनए डैमेज नहीं हो रहा, डीएनए को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, ठीक है। अनुवांशिक गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम को डिफेक्ट नहीं कर रहा है। ये टी सिंपल चाय है मेरा, उसने इतना अच्छा मिरेकल शो किया। दिस इज अगेन इम्यूनो बूस्टर्स। ये सेल कब डैमेज नहीं होंगे, जब आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। इसलिए कोविड में आपको काढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट से पीना है। काढ़ा बनाने का तरीका भी आना चाहिए। आपने दुनिया भर का चीज डाल दिया और चाय पत्ती डाल के उबाल दिया तो वो काढ़ा नहीं कहलाता, ठीक है। काढ़े का कंसेप्ट होता है इट इज डिवॉइड ऑफ टी एंड अ कॉफी, ठीक। तो उसको बनाने का तरीका होता है, अलग अलग तरीका है, इंटरनेट में मिल जाएगा। नहीं तो किसी को पूछना है तो दे कैन हैव माय नंबर and they can talk to me directly. And this is another group where fluorescent microscopy में हमने डैमेज दिखा है, जो येलो येलो डॉट दिख रहा है वो डीएनए डैमेज, न्यूक्लियस के पार्ट टुकड़े में हो गए, और यहाँ पर हमारे सेल रिपेयर होने के बाद एक सिंगल डॉट दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो दिस व्हाट आवर सेल शोज, द लिम्फोसाइट्स हैं दोनों, नीचे वाले में, ऊपर भी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है मेरा आटा। यकीन मानिए ये आटा इतना फेमस हो गया, रीड एंड टीम मेंबर, इट इज आई टोल्ड लाइक दिस आटा कॉम्बिनेशन आई शोन देयर। थोड़ा सा चेंज किया है कोविड के लिए मैंने इसमें, और इसमें 25 ग्राम भुना हुआ चावल लेना है। कच्चा चावल ले लो, बॉइल्ड राइस, ब्राउन राइस, उसको थोड़ा सा भून लो, रोस्ट कर लो। 2 kg देसी चना लेना है। 500 ग्राम रोस्टेड फ्लेक्सीड लेना है। वहां मैंने 250 करा था कैंसर पेशेंट के लिए, इम्यूनिटी के लिए 500 कर दिया मैंने। जितना लिसलिसा चीज होता है खाने के बाद जिसमें तार निकलता है, गिलकी, तोरई, भिंडी, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर डाइट है। इसमें भी लच्छी खाओगे तो आपको रिफाइंड फाइबर है ना, अच्छा तो स्लाइवरी एक्टिवेशन हो जाता है। तो इट कंटेन इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपोनेंट्स। फिर आपको मेज लेना है जिसको बोलते हैं भुट्टा, मक्का, एंड फिर अपन को ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। तो ये आपको चारों लेना है। रागी होता है, राई नहीं, रागी करके एक आता है, नॉर्थ के लोग रागी बुलाते हैं, रागी साउथ का इंग्रेडिएंट है। बच्चे पैदा होते हैं तो काजू बादाम में रागी पाउडर मिक्स करके, हमारे वहां पर लैक्टोजन 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला नहीं चलता है, इसी का इंग्रेडिएंट बहुत सारे चीज डलता है, वो सब करके बच्चों को देते हैं। दे आर वेरी ब्रिलियंट ओवर देयर वर्किंग। फिर सॉल्ट लेना है 20 ग्राम पाउडर, पाउडर भी नहीं करोगे तो चक्की वाला पाउडर कर देगा, 20 ग्राम ले लो। फिर 25 ग्राम भुना हुआ हमें लेना है। क्या लेना है? जीरा, सौंफ और मेथी दाना, ठीक है। ये सब आपको रोस्टेड लेना है और इनका आटा बनाना है। आटा बनाने के बाद इसको रोटी जैसा बनाना है। पानी में बनता रोटी, ठीक है, पानी में बनाइए। कभी मन करता है या दाल बच गया, दाल डाल के उसको डो बना ले। कभी मन करता है सब्जी बच गई, मिक्सी में ब्लेंड कर दे, थोड़ा गर्म पानी डाले, उसका डो बना ले। कभी लगता है नारियल पानी डाल दो तो आधा नारियल पानी, आधा पानी नॉर्मल वाटर, इनसे डो बना ले। इसमें ऑलिव ऑयल, घी डालना नहीं है आपको,
घी से प्रॉब्लम होता है, नॉर्मल तेल ऑलिव डाल सकते हैं तो एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से इसमें डाउ कर सकते हैं। पोमोस यूज नहीं करना चाहिए, पोमोस ऑयल यूज मतलब पोमोस इस ऑलिव का एक ग्रेड होता है, लास्ट ग्रेड, उसको यूज नहीं करना चाहिए पकाने में, मालिश के लिए अच्छा है। बट मार्केट में उसे वेजिटेबल ग्रेड के रूप में बेचा जा रहा है, दिस इज नॉट गुड। आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप दिस मार्केटिंग, बट एक्स्ट्रा लाइट एंड एक्स्ट्रा वर्जिन इज गुड टू ईट। एक्स्ट्रा वर्जिन को गर्म नहीं करते, पकाते नहीं है, गर्म तेल कढ़ाई में उबालते नहीं है, एक्स्ट्रा लाइट को ही पूड़ी और सब्जी के लिए यूज करना चाहिए। इसको दूध में डाल के या पराठा जैसे अपन चुपटते हैं घी, ऐसे आप एक्स्ट्रा वर्जिन को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है डाइट। इसको आप जैसा बनाना है, गाजर के जूस से बनाना है, मल्टी फ्रूट्स के जूस से बनाना है पराठा, जैसा बनाना है सर, 2 सुबह 2 शाम लेने से आपका वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, डायबिटोजेनिक फैक्टर्स, बीटा सेल्स एनहांस हो जाते हैं पैनक्रियाट के, जो इंसुलिन बनाते हैं हम, ठीक है। बीटा आपने डायबिटिक डाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइट है, मैं कैंसर पेशेंट में देता हूँ, इंसुलिन फ्री हो गए ये डाइट लेके, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली जैम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैम जितने भी स्टोन फ्रूट होते हैं, अभी सीजन है स्टोन फ्रूट का, प्लीज इसको खरीद लीजिए और ऑलिव ऑयल में इसको जो मैं बता रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी, चेरी, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी, चेरी, आलू बुखारा, आड़ू और खुमानी, इनको आप वैसे के वैसे डालना है। जीरा डाला, दालचीनी का पाउडर डाला और फटाक से ये डाल दिया तो फट फट के आपके नेक्टर निकालेंगे। फिर अंगूर को भी वैसे ही सिंगल सिंगल डालना है, हर वैरायटी अंगूर 25-25 ग्राम ले लीजिए, आपको जैसा जिसका टेस्ट ज्यादा एनहांस करना वैसे ले लीजिए। फिर 100 ग्राम आप ले लीजिए, 50, 250, 100 ग्राम, टेक 100 ग्राम टू 250 ग्राम ऑफ पियर, जितने भी कलरफुल पियर आते हैं सबको रखे लंबा लंबा, ये यूट्रस को मेंटेन करता है, ओवरी को अच्छे से मेंटेन करता है, इनफर्टिलिटी को ठीक करता है, ये डाइट इम्यूनिटी के साथ बहुत सारा मिरेकल करता है, तो प्लीज सबको लेना चाहिए। एलाजिक एसिड अंगूर में होता है, वो ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करता है, स्टोन फ्रूट गैस्ट्रिक ट्यूमर को ठीक करता है, इसलिए ये डालना चाहिए। ऑरेंज के रिंड को भी करके छिलके को छिल के रख लीजिए, और फिर क्या एप्पल को भी बारीक लंबा लंबा काट लें और इन सबको बाद में डाल दें, हल्का सा नमक और गुड़, पाम जैगरी डाल दें तो लाल मिश्री को पाउडर करके डाल दें, चलाते रहें, ढक दें, सिम में आधा घंटा पकाएं, जैम जैसे फॉर्म ले लेगा, पराठे में, पूड़ी में, चावल, जैसा खाना है वैसे खाइए। खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, ठंड है बहुत, किचन में कौन जाए, मत जाइए, डाइनिंग टेबल में ये बना के रख दीजिए, 4-4 चम्मच सब खा के सो जाएंगे तो आपको काफी नॉरिशमेंट मिल जाएगा। तो प्लीज फॉलो दिस डाइट। किसी को प्रिपरेशन समझना है, मेरा एक वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो बनाना बनाना दिखाया मैंने। दूसरा ये कपूर है, ये कपूर का पेड़ है, तेज पत्ता जैसे रहता है इसका स्मेल, ये ओरिजिनल कपूर है, बहुत मुश्किल से अफगानिस्तान एंड ईरान एंड पाकिस्तान बेल्ट में है, इंडिया में ये लुप्त हो चुके हैं काफी प्लांट इसके, अभी आई डोंट नो कहाँ कहाँ होंगे, बट हमारे गांव में आज भी खाने वाले कपूर का यूटिलाइजेशन होता है। साउथ में बच्चा होता है, शुद्धि करना है, कोई मर गया है, घर की शुद्धि करनी है, तो ये कपूर को क्रश करते हैं गर्म पानी में, गौमूत्र डालते हैं, छिड़क देते हैं हर जगह। और साइंस कहता है, नासा साइंस कहता है कि इससे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक होता है, ग्राम नेगेटिव बहुत ज्यादा, क्लेप्सिला है, निमोनिया वाला, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस वाला, ये सबको किल करता है, तो घर की शुद्धि इससे करते हैं। अभी कोविड में हमने क्या किया, वी डिड अ ट्रायल, हमने इसके पानी को लेके दुनिया भर के बैक्टीरिया में ट्रीट किया, हमने देखा कि एक भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ। मेरे घर बरसों से इसका पोछा लगता है, आज भोपाल में मेरे घर में लगता है, मैंने मेरे घर से लाखों घर को इंड्यूस कर दिया है इसका पोछा लगा। जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा और वो इन्फेक्टिव होगा। जलाने की जगह इसको क्रश करके आपके पिलो के अंदर डाल दें, क्रश करके बेडशीट में स्प्रेड कर दें, सोने के 1 घंटे पहले रूम में डाल दीजिए, टेबल, वर्किंग टेबल है उसके नीचे डाल दीजिए, बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां डाल दीजिए, टॉयलेट में, किचन में, हर जगह ही क्रश करके डाल दीजिए, कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, वायरस का चाचा भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोग कर लें, इसको बहुत जरूरी है, ये कपूर का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करें क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट। ये मैंने हैंड सैनिटाइजर बनाया, काइबोश नाम रखा है, ये कोविड डिसइंफेक्टेंट है। लोगों का पेट दर्द दिया है इसमें कि ये कैसे हो सकता है, इंग्रेडिएंट देख लीजिए, मैंने एलोवेरा डाला है, यूकलिप्टिस डाला है, नीम डाला है, तुलसी डाला है, थुजा डाला है, ग्लिसरॉल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, कपूर है,
फिटकरी है, लेवेंडर एरोमेटिक ऑयल है, जूनिपर एरोमेटिक ऑयल है, टी ट्री एरोमेटिक ऑयल है और सैंडलवुड एरोमेटिक ऑयल है। ये सब लोग बोलते हैं ये तो हर्बल है, ये कैसे डब्ल्यूएचओ अप्रूवल के लिए, ये तो इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा तमाशा कर दिया? We tested so many things, जो लंग इन्फेक्शन लाता है बैक्टीरिया, we had tested it, it had given a very good result। इसमें कैम्फोर भी डाला हुआ है, कैम्फोर डालने से हैंड सैनिटाइजर का पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये इंग्रेडिएंट है, इसका सैनिटाइजर बना के आप लोग यूज कर ले। अभी पेटेंट के लिए फाइल हो रहा है, तो मैं आपको कंपोजिशन नहीं शेयर कर सकता, बट जिसको चाहिए भोपाल आ जाओ, मैं ढेर सारा दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ये दूसरा तेजस्विनी बना है, मेरे डैडी, ये मेरे घर का है, इसको नारायणन लिखा है, मेरे डैडी का नाम है, नारायण फैमिली, सोनागिरी भोपाल में जहाँ रहता हूँ। ये तेज पत्ता से बना है तेजस्विनी, मेरे घर में तेज पत्ता का बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसको हम तोड़ के बॉईल करके कैम्फर के साथ मिला है। बे लीफ है, सिनेमोन है, दालचीनी पाउडर है, कपूर है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, डिस्टिल वाटर है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% यूज करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने 20% यूज किया, फिर भी ये एक्सेलेंट है। जो जो बुराई करते थे आज सब आके मुझसे 500 ml आज भी ले गए, जिन्हें हमारे डॉक्टर ने बहुत बोलते हैं कि ये तो बेकार बना है, कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, हर्बल है। तो आई डोंट नो व्हाई प्राचीन अपने युगों से यूज करने वाला जो औषधियां हैं, उसको लोग क्यों नकारते हैं, क्यों उसको खराब बोल देते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए अंग्रेज राज करते हैं हमारे ऊपर, उनके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हमें यूज करना पड़ता है, और हम अभी भी कोविड से जूझ रहे हैं, वो इन्फेक्शन से। तो ये तेजस्विनी नाम रखा है, ये भी पेटेंट के लिए है। दिस टू हैंड सैनिटाइजर वी मेड, इट्स वंडरफुल रिजल्ट्स वी गॉट। ठीक है, ये रेफरेंसेस है। आपको मैं ये रेफरेंसेस के बाद कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिए। एंड मैं स्लाइड 1 में आ जाता हूँ, और यकीन मानिए वो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई एम गोइंग टू टॉक। मैंने अपने आप को कैसे ठीक किया। यकीन मानिए, दिल्ली के मेरे कई फ्रेंड वेंटिलेटर में थे, आज वो आउट है वेंटिलेटर से। वो खुद बोलते हैं डॉक्टर साहब यहाँ कुछ नहीं करते थे। आज मेरे को एक फोन आया, मेडिकल इंस्टीट्यूट के वो थे और एमआर भी थे, बोलते सर आपने जिन जिनको डोज बताया वो सब ठीक हो गए सर। आप लोग प्लीज मेरी बातें सुनिए, उसे लिखना चालू कर दीजिए। मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मैं पूरा एक एक चीज बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ कि हाउ आई हैड बीन डिफाइंड। मैं लैब में बैठा हुआ था, खाना खाते हुए ग्लव्स खोला, मास्क खोला, हाथ धोया, मुंह धोया, टिफिन रखा टेबल में, तो मेरे टेबल में एक रजिस्टर रखा हुआ था। याद रखिएगा इन्फेक्शन कैसे आता है। हमारे एक स्टाफ के फैमिली मेंबर को था, उनने बताया नहीं हमें, और वो 2-3 दिन से छुट्टी रेगुलर ले रही थी। और जब मैंने वो रजिस्टर टेबल में था, बस उठा करके नेकेड हैंड से दूर रखा, फिर टिफिन ओपन करके खाना चालू किया। बस उतनी मिस्टेक की थी, नहीं तो मैं मार्च से क्या जनवरी से प्रिकॉशन ले रहा हूँ अपने आप। मैंने करीब 6,000 ऊपर पुलिस वर्कर को सैनिटाइज किया फ्री में, तब मुझे कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ। मैंने कोविड पेशेंट को जाके सेवा दिया, तब कोविड से पकड़ के खा लिया। इसलिए रैलिंग को मत पकड़िए, दरवाजा के उसको सैनिटाइज कीजिए, जिस जहां जहां पकड़ते हो आप हाथों को, हाथों से उन चीजों को क्लीन करना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो अपने हाथ को क्लीन करके उसको छुइए, डिसइंफेक्ट करके आप उसको छूना चालू कीजिए, और हैंड वॉश प्रॉपरली करिए। घर गया तो मुझे कुछ नहीं था, नाक में ऐसे लग रहा था कि कोई सांप चल रहा है। एटिपिकल बालों का वो था वेव, जो नॉर्मली बाल हर जेंट्स के, हर इंसान के होता है प्रोटेक्शन के लिए, डस्ट प्रोटेक्शन के लिए। ये थेरेपी ऑटोमेटिकली एनाटॉमिकल फीचर्स है, हेयर टेंटिकल्स नोज में होता ही होता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ सांप चल रहा है, सम स्नेक इज स्क्रॉलिंग देयर। रात के बज रहे थे मेरे ख्याल से अराउंड 10:30। मैंने उठ के सोचना चालू किया कि ऐसा एटिपिकल फीलिंग क्या है। वो मेरे फोर हेड में आके बैठ जाता था, ऐसा लगता था मेरे को कुछ खुजली हो रही है, अलग सी मीठी सी अलग से खुजली। मैंने अपना पूरा बोरिया बिस्तर किया, पैकेट किया, और छत में एक स्टोर रूम बना के रखा था। मेरे पास नीचे भी 6 रूम खाली थे, ऊपर भी रूम मेरा खाली था, लेकिन मैंने बोला मम्मी और दीदी है, पापा अभी खत्म हुए, तो क्या करूं। तो मैंने अपने रूम को शिफ्ट किया ऊपर। बहुत गंदा था, डस्टी था, वहां जाके कैसे से सोया। नींद नहीं आ रही थी, मुझे डर था कि कोविड ना पॉजिटिव हो जाए।
मैंने अपना दवाई चालू किया। पहला चीज मैंने क्या चालू किया, पानी से गरारे किया मैंने, कपूर को गर्म पानी में डाल करके स्प्रे किया पूरे बेड में, और फिर एक एक चीज मैंने क्लीन करना चालू किया कपूर की चीजों से। फिर मैंने हल्दी रोस्ट किया घी में, ऊपर किचन है मेरा, स्टोर रूम में भी एक किचन है, तो सब सामान जो जो चाहिए था, हल्दी पाउडर सौंठ ये सब मैं ऊपर ले गया। तो मैंने घी डाला तवा में और तवे को बंद कर दिया मेल्ट होने के बाद। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सौंठ पाउडर, और चुटकी भर काली मिर्च और लौंग का तड़का लगा दिया उसमें, मतलब डाल दिया एंड मिक्स किया, ठंडा किया और उसको टिन कर दिया। और हर 2 घंटे में पिंच लेके मुंह के नीचे, जमान के नीचे रख लेता था। उसने मुझे खांसी आने नहीं दिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मुझे ब्रोंकाइटिस ऐसा सिम्टम चालू नहीं हुआ। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन मेरे घर वाले परेशान हो गए कि व्हाई यू शिफ्टेड व्हेन यू आर नॉट पॉजिटिव। मतलब आई एम शिफ्टेड बिकॉज आई फील लाइक आई मे गेट पॉजिटिविटी, क्योंकि मेरे फैमिली स्टाफ के मेंबर को हो चुका है। लेकिन मैंने चौथे दिन में जाके टेस्ट कराता हूँ, तो मेरा रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है। वहां डर चालू हो जाता है मुझे कि मैं 4 दिन से मेडिसिन ले रहा हूँ अपना, उसके बाद ऐसा हुआ। तो मैंने 4 दिन में एडिशनल मेडिसिन क्या लिया, आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। चाहे सर्दी हो या नहीं हो, बुखार हो नहीं हो, लेकिन आपके नाक में खुजली लगे, आपके पाँव में अलग सा एटिपिकल दर्द हो, सीढ़ी चढ़ते वक्त आराम से चढ़ोगे, लास्ट के 4 स्टेप चढ़ते वक्त आपको लगेगा नहीं यार आई कांट क्लाइंब मच, मुझे अलग सा लग रहा है थकावट, तो ये चालू कर देना जो मैंने इंग्रेडिएंट बताया हल्दी वाला वो। और साथ में पंकज कस्तूरी 1 चम्मच 3 टाइम मुंह में रख के डिजोल्व कीजिए। एडल्ट लोग, बच्चे लोग पिंच 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 3 टाइम। और तीसरा चीज एजिथ्राल 500 mg, अच्छे सुनिएगा मेडिसिन बता रहा हूँ, एजिथ्राल 500 mg, आइवरमेक्टिन का 12 mg का पहला दिन, 7वां दिन और 30वां दिन, 3 ही टैबलेट खरीदना है और 3 बार लेना है। आज लिया, फिर आज के 7वें दिन के बाद लिया, फिर तीसरे दिन के बाद लिया आइवरमेक्टिन 12 mg। एंटी हेलमेथिक है, ये इंसेक्ट जो इंटेस्टाइन में, गट्स में जो पैरासाइट रहते हैं उनके लिए है ये दवाई, लेकिन ये कारगर है, बहुत अच्छी दवाई। और विक्स को छाती में और नाक के नॉस्ट्रिल के अंदर थोड़ा लगा लें। ये तो आपको प्रोटेक्शन का काम करेगा, लेकिन इम्यूनिटी का काम आपको ये डाइट लेना ही पड़ेगा। मेरे डैडी डायबिटिक थे, इंसुलिन 25 साल से ले रहे थे, और 2018 में मैंने हरीफ को और उनके ग्रुप में एलपी में 4 लेक्चर दिए, चारों में बताया माय डैडी हैड बीन डिक्लेयर्ड डेड ऑन 7th of December 2018। मैं चेयरमैन हूँ उस इंस्टीट्यूट का जहां पर मैं पापा को ले गया था, उस मेडिकल कॉलेज में, पीपल्स मेडिकल कॉलेज। वहां लोग सब बोले डॉक्टर साहब रो रहे हो आप, इतने बड़े हो के, आप तो चेयरमैन हो, आपको मोटिवेट करना चाहिए। पापा का 84 एज हो गया, मतलब मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर नाउ, आई एम अ सन। मेरे डैडी को मैं बॉडी नहीं ले जाऊंगा, बहस करते करते 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में बॉडी की कंडीशन क्या होगी आपको मालूम है। तीसरे घंटे के बाद उनको वेंटिलेटर में डाला गया, ऐसे ही मेरे को खुश करने के लिए। बट मेरा विश्वास था कि डैडी रिवाइव करेंगे। तीसरे दिन मेरे डैडी रिवाइव किए, थोड़ा सांस चालू हुआ। मैं बहुत शुगर 700 आता है, शुगर 500 आता है, और 500 से थोड़ा कम होकर 250 आता है, तो लानत है कि हम 35 साल से 25 साल से शुगर के लिए हम इंसुलिन दे रहे थे। क्या दे रहे थे, बीइंग साउथ इंडियन कोस्टल लाइन के फिश ईटर्स, रेगुलर फिश ईटर्स, हमें रोज देंगे रोज खाएंगे, लेकिन चावल के साथ, रोटी नहीं खाते थे। जहाँ रोटी 50 kg आता था, अब वो ऑलमोस्ट 400 kg के हिसाब से हर साल आता था। हमने मम्मी को बोला पापा को आप गेहूं नहीं देंगे, हम देंगे ये वाला आटा जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताया। मेरे डैडी को डॉक्टर ने बताया कि ना सुनेंगे ना देखेंगे, ना इम्यूनिटी इनकी बूस्ट होगी ना कुछ होगा। मेरे डैडी 5वें 6ठे दिन ही इम्यून बूस्ट करके उनका खून ठीक होने लगा, बातें चालू कर दिया, हाथ का मूवमेंट हो गया, नेक मूवमेंट हो गया, एंड ही स्टार्ट टॉकिंग ऑल्सो। जो डॉक्टर ने बोला था ब्रेन का इन्फार्क्ट है, फोंटाई का 90%, ये रिवाइव नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं दोगे चले जाएंगे। मेरे डैडी बिना ऑक्सीजन के लिए पंकज कस्तूरी को मैं पानी में घोल करके भी से देता था। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो शॉर्ट में है स्वीट है, लेकिन प्लीज फॉलो कीजिए। पहले पर्सनल हाइजीन, हाथ पांव अच्छे से धोइए, कपड़ों को अच्छे से धोइए,
बाहर से आते साथ किसी को मत टच कीजिए। यदि आप आ रहे हो तो घर वालों को बोलिए दरवाजे को सैनिटाइज कर दीजिए, नहीं तो अपने सैनिटाइजर दरवाजे को सैनिटाइज करके अंदर घुसिए। जूता चप्पल सॉक्स सब बाहर खोलिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बाई को बोल दीजिए सर्वेंट नहीं है तो आप खुद स्प्रे स्प्रे कीजिए, क्रश योर कैम्फर एंड स्प्रेड एवरीवेयर वेयर एवर यू। और जो बीमार पेशेंट है कोविड पॉजिटिव से, उनके पिलो के अंदर डाल दीजिए, सोते सोते सूंघते रहेगा और बहुत अच्छा सूदिंग मिलेगा। करके देखिए। ये डाइट इज वेरी प्रिसाइज डाइट। लेमन लीजिए, बहुत जरूरी चीज है। लेमन को शुगर और सॉल्ट के साथ लीजिए। आप ऑरेंज सीजन है, ऑरेंज लीजिए, लेकिन ऑरेंज सीजन में आप छिलके को फेंक देते, छिलके को फेंकना नहीं, उसको लंबा लंबा काट के फ्रीजर में डाल दीजिए। जब भी चाय बनाते हैं, सौंठ अदरक जो भी आप डालते हो बॉईल होने दीजिए, सीवर में आप छलनी में डाल दीजिए इनके टुकड़ों को, पत्तों छिलके के पत्तों उनको टुकड़ों को जो स्लाइसेस काटा है, एंड पोर हॉट वाटर फ्रॉम टॉप कप में जो आपको डिकॉशन बनाए। आपको टर्पिन्स एंड क्रिप्टोजैंथिन्स मिलेगा, जो कंपाउंड आपके लंग इन्फेक्शन को ठीक करता है। क्रश करके सूंघोगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सरफेस इम्यूनिटी। नाक से जाएगा तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया और फंगस को भी मारेगा। तीसरा, मेमोरी को एनहांस करता है, चिड़चिड़ाहटपन को दूर करता है। यदि मरीज है आपके घर में, बेड रिडन है, सूंघ नहीं सकते, तो आप उसको स्प्रे कर दीजिए उनके बेड की चारों तरफ, क्रश करके रख दीजिए नाक के पास, पिलो के पास। वो काफी सूदिंग इफेक्ट है। इंसोम्निया, नींद नहीं आती इससे, वो ठीक हो जाएगा। मैं सोचा ये ऐसी बीमारी होगी, बकवास। मेरे को 9 दिन लग गए इस बीमारी को समझने में। मेरा लंग सब कुछ डैमेज हो चुका था, लेकिन मैं एक दिन भी वेंटिलेटर में नहीं गया, मैं कुछ भी नहीं किया। 42 डेज अपने आप को आइसोलेट किया, जब तक मेरा रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है। रिपोर्ट मेरा नेगेटिव 17 डे में आ गया था। बिकॉज ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स, पैथोलॉजी मुझे पॉजिटिव देते जा रहा था जब तक मैंने पुलिस एक्शन नहीं ली। तो ऐसे सेंटर से भी बचिए। एक सैंपल को 4-5 जगह दीजिए, काउंटर चेक वेदर यू आर नेगेटिव और पॉजिटिव। बट ये डाइट आप डे 1 से चालू कर दीजिए, इससे अच्छा डाइट नहीं होगा। सोइए ज्यादा अच्छे से। लेकिन मैं तो सोता नहीं हूं, तो मैं उसके फेवर में नहीं। साउंड स्लीप, आप 8 घंटे होके भी साउंड स्लीप नहीं ले पाते तो क्या मतलब ऐसे स्लीप का? मैं आधा घंटा सोता हूँ, साउंड स्लीप लेता हूँ। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ दैट यू विल गेट अनॉइड। काफी लोग सुन रहे होंगे मुझे, 6-8 घंटे डॉक्टर खुद बोलता है सोने, लेकिन मैं तो 3-2.5 घंटे सोता हूँ यार। तो आई डोंट गेट डिस्टर्ब। मेरे को तो अभी इतने साल हो गए, 50+ एज का हूँ, तो मैं अभी तक बुढ़ा नहीं हुआ मुझे लगता है। माय स्किन स्टिल शाइन्स अप फाइन। पानी अच्छे से लेना है, बहुत अच्छे से लेना है। पाँव को अच्छे से साफ करके ही आप जाए, ठीक है। और मास्क को यहाँ वहां उतार के मत रखे। मास्क को धो नहीं सकते तो एक कंटेनर खरीद लीजिए प्लास्टिक का, कपूर डाल दीजिए उसमें, और ये मास्क को भी रख दीजिए, दूसरे दिन उठा करके पहन दीजिए, स्टेरलाइज हो जाएगा। आपके छोटे कपड़े, अंडरवियर, बनियान, ये सब जितने भी चीजें, रुमाल, टाई, जितने भी छोटी चीज रूटीन में यूज करते हैं, ये ज्यादा इन्फेक्टिव के इन्फेक्शन के क्लोज बाई होते हैं। इनको भी वॉश करके, धूप दिखा के, एक कंटेनर में या कबर्ड में ही कपूर डाल दीजिए, बंच ऑफ कपूर क्रश करके, और ये कपड़ों को रख दीजिए, स्टरलाइज कर दे। आपको ऑटोक्लेव की जरूरत नहीं, आपको बड़े मतलब यूज एंड थ्रो वाले चीजों की जरूरत नहीं। रीयूज कर सकते हो चीजों को, बट यूज इज प्रॉपरली। सुबह का मास्क रात को उतर जाना चाहिए, नेक्स्ट डे यूज नहीं होना चाहिए प्लीज। लेकिन गरीबी इतनी है, अमीर लोग भी गरीब है इसमें, गंदे से गंदा मास्क पहनते जाते हैं, पता नहीं उसके चितड़े निकल जाए तब तक पहनते हैं। उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट धो नहीं सकते तो कपूर में उसको क्रश करके रख दीजिए, 24 घंटे अपने आप स्टरलाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। If you have any queries, please let me know. My number is very common and easy. We have 32 teeth. उसको आधा करेंगे तो 16-16 होता है। 32-16-16 मेरा आखिरी का नंबर है। याद रखना है आपको, 9826 बस। तो 9826 32-16-16, this is my number. Anytime you are open for my forum, any day, any time you can call me up. रात को 3 बजे भी बोलोगे तो मैं आपके लिए तत्पर हूँ। एलपीयू ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, मुझे उस पूरे महीनों में, कि मेरे को गर्व होता है कि वो बच्चे मुझे आज भी परेशान करते हैं कि सर मुझे ये हो गया क्या करना है, सर मुझे वो हो गया क्या करना है। आई फील प्राउड टू एक्सप्लेन। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उनको लगता है कि गणेश सर सोते नहीं है,
तो दे कॉल मी अप एंड आई पिक देयर कॉल एंड आंसर देम। तो मैं कभी भी निराश नहीं होता हूँ कॉल रिसीव करने में। आप लोग यू आर ऑल वेलकम फॉर एनी क्वेरीज। और इस ये डाइट से इनफर्टिलिटी भी ठीक होता है। तो जिनको इनफर्टिलिटी का इशू है वो भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो यू मस्ट टेक दिस डाइट ऑल्सो एंड नाइसली। इसमें एक ककड़ी जैसा चीज दिख रहा है, वो ककड़ी नहीं है, वो है जुकीनी। और प्लीज उसे लीजिए, उसको रायता बना के खाइए। कद्दू का ग्रेट ग्रैंड सन है ये। वो कद्दू मोटा लंबा होता है, ये लंबा सा ककड़ी जैसा होता है, बट सेम इंग्रेडिएंट, सेम एवरीथिंग इज सेम। बट गुड फॉर मेल फर्टिलिटी, गुड फॉर बोन, गुड फॉर इंटेस्टाइन। अर्थराइटिस पेशेंट को भी बहुत अच्छा है। ये सब इम्यूनिटी एनहांस करता है। और देशी टमाटर छोटे छोटे आते हैं, देखेंगे आप, मिनिएचर टमाटो। प्लीज खट्टा होता है, लेकिन एक को काट करके दही में डाल करके आप सॉलो कर लें धूप में बैठ के, प्रोस्टेट का इशू भी नहीं आएगा। बहुत सारे कैंसर को आप रोक सकते हैं इन चीजों से। एंड थैंक यू फॉर वंस अगेन अरीब एंड योर टीम। एंड जितने लोग मेरे से बड़े हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार और चरण स्पर्श। और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे कोलीग्स, उनको मेरा प्यार और बहुत सारा ढेर सारा ग्रीटिंग्स फॉर अपकमिंग ईयर। मेरे ख्याल से 2020 should not be like 2021 should not be like 2020। मेरी उम्मीद है कि कोई पैंडेमिक अब नहीं देखना अपन को, एटलीस्ट हमारे परिवार के लिए। हम इंडिविजुअल अपने लिए सोचें, क्राउड के लिए नहीं सोचें। ये मैंने डाइट इंडिविजुअल के लिए बताया है। इंडिविजुअल से ही कॉलोनी बनता है, पॉपुलेशन बनता है, कंट्री बनता है। कम्युनिकेट माई टॉक टू एवरीवन प्लीज। थैंक यू, नमस्ते। अरे Thank you so आप मेरे उसको वीडियो को ऑन कर दें, इसको कैसे करेंगे? अच्छा, ओके ओके। Thank you so much, sir. I believe that I am all of not visible. Oh, I am going to. sorry, sir. मैं दिख रहा हूँ आप लोग को? नहीं, sir. It's your camera is turned off. Oh, how? Okay, bye. Thank you so much, sir. It was a wonderful session. Sir, I believe that most of our questions were solved during this, and आपकी बात सुन के I am now 100% sure that हमारी हर problem का solution kitchen में ही मिलता है. Like Yes, we've been learning from it, listening this from a childhood, but today I really saw the practical implementation of this. please do A that. wonderful session once again. With Thank this, you. sir, I have some questions which were raised by the panel, and of course, later we'll be opening the opening it for the panel also to ask their questions. Before Yeah. that, sir, I would like to ask that जैसे आपने बताया कि कोविड पेशेंट आप जब कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए थे तब आपने क्या क्या किया, बट सर सिमिलरली जब कोई हमारे फैमिली में कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है तो बाकी फैमिली मेंबर को क्या करना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहे एंड वो मतलब आगे भी एक्सपोज ना हो इस वायरस के? Yes, very good question. What's your name? यशस्वी। अच्छा, यशस्वी, थिंग इज लाइक सपोज मैं पॉजिटिव था तो मैंने सबसे पहले आइसोलेट किया। तो पहला दिमाग का काम यही करना है, जिसको सिम्टम चालू हो गया, जिसको लगता है कि मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, अपने शरीर में रूटीन से हटके, रूटीन बीमारियों से हटके कोई सिम्टम दिख रहा है। जैसे मुझे क्या दिखा था, नाक में ऐसा हल्का सा ऐसा लगता था कि कोई स्नेक वॉक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा सिम्टम मेरे को कभी नहीं हुआ, तो ये एटिपिकल था। दूसरा, मेरे प्रॉक्सिमिटी में पाऊं कि मैं बहुत खड़ा होकर बहुत काम करता हूँ, बहुत अच्छे से काम करता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। यू कैन सी माई स्किन टोन, आई डोंट अप्लाई एनीथिंग। मैं इतना जगता हूँ, 3 घंटे 2.5 घंटे सोता हूँ, उसके बाद मेरा स्किन टोन बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे को जब प्रॉक्सिमिटी में पेन हुआ तो एटिपिकल पेन था, मतलब ये अलग सा झंझनाट सा पेन है। वो ना अर्थराइटिस में होता है, ना किसी के वायरल फीवर में होता है। ये दोनों एसिम्टोमेटिक एटिपिकल सिम्टम्स को लेके मैं पकड़ के बैठी है। तो मैंने सबसे पहले आइसोलेट किया। मेरी मम्मा, मेरी दीदी लोग खिड़की में आके रोते थे, राजू चलो प्लीज कम डाउन, व्हाई यू आर आइसोलेटिंग, यू आर नॉट पॉजिटिव। मेरी मम्मी की गलती देखो, वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। शी इज 77, शी वाज रिटायर्ड आईएएस,
वो ने मेरे को बेड में नहीं देखा फ्राइडे, तो गई और मेरे बेड में जाके सो गई। मैंने पिलो नहीं हटाया था और बेडशीट नहीं, ये पिलो से फैलता है। जिनको भी बुखार हो रहा है, जिनको सर्दी जुकाम हो रहा है, प्लीज अपने पिलो को डेली गर्म पानी में धोए और कपूर भर के रख दे अंदर। नहीं तो ये पिलो से सोता है, कोई दूसरा जाके सो जाएगा तो इट इज गोइंग टू इजिली ट्रांसफर, बिकॉज अपन सांस ले रहे हैं, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर वेरी नाइसली। तो वी शुड स्टॉप दैट। तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें पंकज कस्तूरी को यूज करना चाहिए, है ना। मैं बॉटल दिखा रहा हूँ पंकज कस्तूरी का। हमें बहुत अच्छे से, जैसे ही हमें लगता है कि हमारे पापा पॉजिटिव हैं, उनको तो देना ही देना है, हमें भी चालू कर देना। हाफ स्पून, हम एडल्ट है, हाफ स्पून अपन को चालू कर देना। मैं सामने ही रखता हूँ, वो हल्दी का येलो डब्बा देखो, एक हल्दी भी है। एंड यू मस्ट टेक दिस। बच्चे छोटे 15 साल से छोटे तो पिंच दीजिए, टंग के नीचे रख दीजिए, अपन को मुंह में रख दीजिए, अपने आप मेल्ट होगा, धीरे 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 सॉलो करते जाइए एंड हैप्पी, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो दिस यू हैव टू डू इट। दूसरा, कपूर का यूसेज बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, लाइक मैं बना के रखता हूँ, वो हल्दी वाला मैं जो बना के रखा, दिख रहा है, ये साथ में रखता हूँ। हो सकता है मेरे कोलीग को, मेरे पेशेंट को जरूरत पड़े तो मैं यही रखता हूँ। तो ये अपने पास रामबाण है। तवा लेना है, गरम करना है, गैस को बंद कर देना है, घी मेल्ट हो जाएगा, प्योर घी। अब 2 मेंबर के हिसाब से डोज बता रहा हूँ कि एक दिन का डोज क्या होगा। 1 चम्मच हल्दी लेना है, टी स्पून, और 1 चम्मच सौंठ लेना है, और पिंच भर काली मिर्च और लौंग का पाउडर। तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास लड़ाई होगा, दंगा होगा, तब जाके हम प्रिपेयर रहेंगे, नहीं। हमें मालूम है कि पेंडेमिक आ चुका है, तो हर घर में सौंठ का पाउडर, हल्दी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और लौंग का पाउडर होना ही चाहिए, और एक तुलसी का पेड़ भी होना चाहिए। नहीं है तो कर लो, चलो, ठीक है। बर्थडे गिफ्ट देना, आप लोग ये गिफ्ट दीजिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये चालू कर दिया। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन केक्स एंड बुकेज एंड गिफ्ट्स, है ना, वो देख के बोलेगा सस्ता वाला दे दिया, एटलीस्ट मैं आर्गुमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई स्टार्टेड दैट। तो वो आप लोग लेना चालू कर दो, ये प्रिवेंटिव मेजर्स। ऑरेंज का सीजन आ गया, उसको स्मेल करना है, अच्छे से क्रश करना है, नाक के पास लेना है, अच्छे से सांस लेना है। सांस लेना कैसे, होल्ड करके छोड़ देना। ऐसे करने से 5-6 दिन देर के बाद टर्पीन्स पूरा अंदर चले जाएगा और हमारे बैक्टीरिया वायरसेस मर जाएंगे। इतना तो कर ही सकता है ना इंसान। एक काउंटर में जाके ऑरेंज कैसा मीठा है करके वो पोछ के, बिना पोछे भी खा खा लेते हैं अपन। तो वी कैन डू दैट, डोंट वेस्ट पील्स। चाय बनाइए, दाल में डालिए, आप उसका चटनी बनाए, चटनी डालते तो उसमें भी पील को डाल दीजिए, इट विल गिव अ टेस्ट। आप चाय डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो दिस प्रिकॉशन यू मस्ट टेक। और मैंने आइवरमेक्टिन का मेडिसिन बताया, वो उससे अच्छा दवाई नहीं है बच्चों। जिनको नहीं है उनको अभी से, जिनको नहीं है कुछ नहीं, परिवार में किसी को नहीं है कोविड, उनसे रिक्वेस्ट है, आज एक दवाई ले लें 12 mg, फिर 7th डे ले लें, और फिर 30th डे ले लें, बस बात खत्म। कोविड का चाचा भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो अपन को ये लेना है। दूसरा, होता है सिम्टम, लगता है तो एजिथ्रॉल 500 mg पहले दिन से चालू करो, एक टाइम लेना है, खाली पेट। सब डॉक्टर बोलते हैं भर के पेट लेके एंटीबायोटिक लेना चाहिए, नहीं, केवल एकमात्र वो है एंटीबायोटिक जिसको खाली पेट लेना चाहिए। एक आपने पेंटॉप ले लिया, जलन नहीं हो, पेंटॉप 40, और एजिथ्रॉल खाली पेट ले लिया। फिर खाना खाने के बाद बी कॉम्प्लेक्स आपने, वो कैल्शियम ले लिया आपने, जिंक ले लिया आपने, दोनों लिमसी ले लिया, विटामिन सी ले लिया। विटामिन सी मार्केट से क्यों खरीदना, अभी तो सीजन है, बियर का सीजन है, अमरूद का सीजन है, ऑरेंज का सीजन है, अच्छे से खाओ यार, छुपा छुपा के खाओ, 250-250 ग्राम डेली लो, तब किसने मना किया। ये बहुत अच्छा रेस्टोर हो जाएगा आपके शरीर में। तो ये सब आप पहले से कर लें, ठीक है। तो इन चीजों को आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I would suggest all of our audience to watch this video again. इसमें इतने सारे important points है ना, हम लोग copy pen लेके just note them down. Beautiful points, and I have never ever heard about these things and these implementations. How can we use it? जी, any With questions? this, I open the panel for audience. Use this opportunity at its best. Seek answers to your curious questions. जी, hi Arif, you're looking handsome.
हाँ हाँ। आपके दादा कैसे, तबीयत खराब थी? somebody sick? ठीक है। ओके। हम्म हम्म हम्म। हम्म। यार, अरे, एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड वेरी इनोसेंट क्वेश्चन टू आस्क। कोविड से अभी तक अपने पास 1,10,000 के ऊपर लोग मर गए हैं इंडिया में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि लोग को डेथ होना है बेटा, एक दिन सबको मरना है। लेकिन वो लास्ट रिचुअल फैमिली मेंबर को जो मिलता है ना अधिकार, वो अधिकार है, दैट इज अ राइट। और कोविड ने वो छीना है। तो लोगों ने कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी बताया नहीं कि ये कोविड पॉजिटिव से डेथ हो गया। तो उनका रिकॉर्ड क्या होगा? वो तो लाखों में होंगे मेरे ख्याल से। Got it? तो दिस सेंटिमेंट्स अटैच है लोगों के। लेकिन ये क्वेश्चन आपने जो पूछा ना, दिस इज लाइक, क्या मलेरिया चला गया क्या? कब आया था? रोज, ये बैक 1850 में। ठीक है। जॉइंटिस चला गया क्या? नहीं गया। ये भी नहीं जाने वाला। इसके ऊपर रहना सीखना पड़ेगा हमें। इस शैतान को हमें नाक के अंदर घुसने नहीं देना है। मेरे को सेकंड रिपीट हुआ अभी, लास्ट 15 दिन पहले सेकंड अटैक आया इसका। और मैंने 3 दिन में भगा दिया। मैं छुट्टी नहीं लिया ना, हॉस्पिटल में बताया आई एम पॉजिटिव। मैं आया, काम किया, किसी को मैंने जिन जिन को मिला, सबसे अच्छा बात, बच्चों ध्यान से सुनना, मैं हॉस्पिटल में 4 दिन काम किया उस पहले, जब सितंबर में हुआ था। और फिर मैंने मंडे ऑनवर्ड्स, 20th ऑनवर्ड्स, सितंबर 20 ऑनवर्ड्स मैंने छुट्टी लिया। लेकिन मैं जिन जिन को मिला उनको फॉलो किया मैंने। वो कोई भी इन्फेक्टेड नहीं था, सबका कोविड नेगेटिव। मैं जिस जिस शॉप में गया, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, स्वीट शॉप, क्लॉथ शॉप, मैं सबको फोन लगाया कि हम पॉजिटिव, आप लोग प्लीज चेक कर, ये दायित्व बनता है सबका। अरे, ये वो थोड़ा है कि लड़की भगा के ले जाना है शादी करने के लिए। अरे भाई, यू मस्ट से प्राउडली दैट आई एम कोविड पॉजिटिव। एटलीस्ट आप हजारों को रोक सकते हो इससे, इन्फेक्शन से। नहीं, पर्दा लगा के घर के अंदर बैठ गए हो। मैंने तो पूरे कॉलोनी में आया, मोर देन 500 हाउसेस, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको डाल दिया, आई एम कोविड पॉजिटिव, माई मॉम इज पॉजिटिव, माई सिस्टर इज नेगेटिव। एक ही घर में हमारी दीदी नेगेटिव थी। क्यों? क्योंकि उनका रूम बिल्कुल सेपरेट है, इंटरेक्ट नहीं होती हमसे ज्यादा। और मैं घर भी जाता तो डिस्टेंस मेंटेन करके भी टॉक। मैं मम्मा को हक के बहुत प्यार करता हूँ मम्मा को। आई एम 53, बट स्टिल आई एम लाइक अ 5 years चाइल्ड। मैं बहुत प्यार करता हूँ, गोदी में बैठता, तो दिस हाउ आई गिवन इन्फेक्शन। लेकिन उस दिन से आज तक मम्मी को हक भी नहीं करता हूँ, पकड़ता भी नहीं। मुझे मालूम है मैंने क्या तकलीफ दिया है मम्मा को, लेकिन मम्मा 10 दिन में ठीक हो गई। मैंने वो इन्फेक्शन को खाया था हाथ से, खाना खाते वक्त। दिस हाउ इट गोस टू द इंटेस्टाइन एंड एवरीवेयर। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि इसके साथ रहना पड़ेगा। अब हमें पता नहीं ये क्यों शादी, मेरे फ्रेंड ने अभी किया शादी, मैंने आईएएस ऑफिसर है, कितने अच्छे अच्छे लोग आ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सास ससुर और उनके घर से एक ब्रदर या एक सिस्टर को इनवाइट किया। उनके घर के टेरेस में उन्होंने शादी करी। सबको लाइव वीडियो दिखाया। बोला तुम लोग को गिफ्ट देना है, मैं पेटीएम डिटेल दे रहा हूँ, गूगल पे दे रहा हूँ। हाँ, पेमेंट किया सबने। स्वीट सबके घर पहुंचा दिया उनने। कहा? खुद के घर से नहीं, स्वीट शॉप से बोला कि जो हाथ से बनता नहीं है, चीजें जो पैक फ्रेश बन के नहीं होता, जो सील्ड पैक है, वो सब ड्राई फ्रूट्स है जैसे, है ना, खुमानी, ये सब सब कितने हजारों के घर में पहुंचवा दिए उन्होंने। दिस इज व्हाट आई वांट, शुड बी मैच्योरिटी। ये विदाई के लिए 10 लोग होंगे तब लड़की रोएगी क्या? नहीं ना। बर्थडे 10 लोग होंगे तब कटेगा क्या? आई अंडरस्टैंड व्हाट इज कोविड। कोविड इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट एट ऑल अ जोक। जो सफर करता है 42 डेज टीन शेड में, मेरा ऊपर एक रूम बना था जिसको हमें कंक्रीट छत डालना था, तभी पापा की डेथ हुई। तो 1 साल तक कुछ अच्छा नहीं करना था, इसलिए टीन डाल करके बारिश से बचने के लिए हमने वो करा।
उसमें जाके यू वोंट बिलीव इतना डस्टी था. थिंक अबाउट माय पेरेंट्स, माय सिस्टर एंड मॉम, शी इज क्राइंग आउटसाइड, आई एम इनसाइड. 42 days मैं घर के बाहर नहीं निकला हूं, आई नॉट सीन द सन. जो मैं इतना बातों नहीं हूं, लेकिन मैंने क्या नहीं छोड़ा मालूम है? मैंने ऑनलाइन डिस्कशन, पेशेंट केयर नहीं छोड़ा. कोविड में 9 दिन सोया नहीं, नींद नहीं आता था. फिर मेरे पास लेवेंडर ऑयल था, 2 ड्रॉप एक स्पून में डाला और स्प्रिंकल किया, नींद आ गया. तो मैं बता दूं, जिसको नींद नहीं आता, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, टेक एरोमेटिक लेवेंडर ऑयल. ठीक है, आया समझ में? साउंड स्लीप अपने आप आधे घंटे का मिल जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रहना कैसे बच्चों. हमारी लाइफ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी सामने वाले की. तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको बताएं. एड्स पॉजिटिव, टेल समवन आई एम एड्स पॉजिटिव, आई एम कैंसर पॉजिटिव, आई एम दिस पॉजिटिव. एटलीस्ट पीपल शुड अवेयर. हमें मर्सी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट मर्सी. ठीक है, अरे हम सेफ गार्ड कर सकते हैं लोगों को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है वो मदन मोह की तरह. ये हमारा बुक 25 years का मैगजीन डेवलप किया था, तभी हमने ये बुक को रिलीज किया. ये चाय का इंग्रेडिएंट है. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें करना क्या, एजेंडा होना चाहिए लाइफ में. मरना है बेटा एक ना एक दिन. हम घर में रजाई के अंदर जो बैठ के मर जाए या किसी को इन्फॉर्मेशन देके, तो जितना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हमें देना चाहिए. और यंग बच्चे ही कर सकते हैं, हम बुड्ढों का काम नहीं है. आप लोग हजारों को, मेरे को रात भर जगाओ, मेरे को मजा आएगा. एक फोरम बनाओ बच्चों का. मैं रात भर, इनफर्टिलिटी का इशू बहुत है लड़कों के साथ, बहुत सारा इशू है जो बताते नहीं. शादी के बाद लड़कियों को बेनिफिट मिल जाता है कि डाउरी का केस लगा दो और काम लगा दो इनके घर वालों का. मैंने मुहिम छेड़ दी है यहाँ पर इंडिया में. मैं शादी के पहले ही इनफर्टाइल है कि नहीं वो डायग्नोस करता हूँ. सिंपल डी से डायग्नोस कर देता हूँ, स्केल से, डी से. स्केल से डायग्नोस करता हूँ, 1 रुपए नहीं लेता, रिपेयर कर देता हूँ. शादी के बाद मिल के रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डाइवोर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट टेक सेकंड टू डिसाइड. लेकिन हमारा लाइफ, एक बेबी हो जाए, एक अच्छा हेल्दी लाइफ हो जाए, एक फैमिली ओरिएंटेशन हो, सोसाइटी बनता है उससे. तो वो भी चलो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, किसी भी डिसीज से, आई एम रेडी टू हेल्प यू. बोलिए, और कोई क्वेश्चन? Arif, don't you feel like a one-man army he is? You had that personal interaction. You had that personal interaction by just having this virtual meet. No, I am having goosebumps. Like I am feeling honored. Yeah, कि what this is something I did today. Something fruitful. मुझे भी अच्छा लगता है. आई लव टू टॉक टू पीपल. मर गया तो कौन बात करेगा बेटा? मरना सबको. हमेशा एक फैक्ट को याद कर लो, मरना सबको है. यदि हमारी डिग्री, हमारा नॉलेज बाहर नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला. इस डब्बे को शो करके मुझे मिलेगा क्या? कमीशन? नो. डिस्काउंट. मार्केट में 400 में मिलता है, मैं 300 में दिलवाता हूँ, है ना? तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें करना क्या. देखो मेरे टेबल में क्या क्या मिलेगा. सोलिन, ये भी रख लीजिए, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है. मतलब मेरे रूम में आपको सब मिल जाएगा. देखो मैंने क्या क्या रखा है, क्योंकि हो सकता है जरूरतमंद आएगा, उसको खांसी हो रहा है, कुछ है नहीं, फटाक से हनी में मिक्स किया, उस हल्दी के पाउडर को दे दिया मैंने. सब रखना चाहिए अपने टेबल में, आसपास में. आजकल वैनिटी किट होता है ना, लिपस्टिक, आईब्रो, लिप लाइनर, ये सब छोड़ के ये करना चाहिए, है ना? और लड़कों के बाल नहीं होते, पप्पू कंगी रखते, कंगी रखने, वो सब छोड़ के यू कीप दिस वैनिटी इनसाइड. किसी को भी कभी भी मदद हो सकता है ना? बोलो बच्चों, और कुछ? Any more questions, people? अविनाश जी, कैन यू हियर Good मी? evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. हाँ, you look very handsome. Good evening. Thank you, sir. Sir, first of all, I'm very honored. Like आपने इतना सब कुछ बताया. Like ये सब चीजें ना मेरे मम्मी यूज करती थी, लेकिन I was like, क्यों करते हो ये सब? मत किया करो ये वो, डॉक्टर का प्रिस्क्राइब मेडिसिन लिया करो. और सर आज पता चला कि ये सब कितना, मतलब इसमें भी साइंस होता ही है सर. सब मेडिसिन नहीं है सर. घर का मेडिसिन है, वो भी मेडिसिन है. लाइक मेरी मम्मी हमेशा यूज करती है, जो कपूर होता है, जो सर्दी के कपड़े होते हैं, जो गर्मी के टाइम में अपन रख देते हैं, उस सब में कपूर डाल के छोड़ देती है मम्मी, ताकि खराब ना हो. मेरे को आसपास लगी क्यों करती है मम्मी. और खाने वाला कपूर मिलता है, एक होता है पूजा वाला,
एक एडिबल हाँ कपूर मिलता है, प्लीज उसको लेके, बूंदी का लड्डू होता है ना, हाँ सर। तो प्लीज किसी को बोल के बूंदी के लड्डू को ऑर्डर दो और बोलना ये कपूर भी डाल दे उसमें। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन एक किलो में 10 ग्राम का कपूर। जी सर। ओके सर, हमारे मैं पूरे, आपने देखा कि तिरुपति बालाजी का प्रसाद जो लड्डू होता है, हाँ सर। सर मैंने देखा है सर, एक्चुअली मैं खुद सालासर से हूँ, वो सालासर हजारों में बालाजी। मिलता है, हजारों में मिलता है एक, और उसको लेने के लिए पागल है, क्योंकि लोग को लगता है हमारी बीमारी ठीक हो गई खाने से। अरे भाई उसमें कपूर डाला हुआ है, कपूर। हाँ सर, मैं मम्मी को बोलता हूँ, पापा को बोलता हूँ, यहाँ पे बनवा लेंगे वो। हाँ, और सर आप मेरा एक कहाँ रहते क्वेश्चन हो? था। सर मैं वैसे तो राजस्थान से हूँ, सालासर से, लेकिन मेरे पापा का बिजनेस यहाँ पे काठमांडू में है, तो हम काठमांडू में रहते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। एक्चुअली मैं काफी फुटबॉल खेलता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले फुटबॉल खेल रहा था, तो मैं गिर गया था फुटबॉल खेलते खेलते। हम्म। तो सर मेरा राइट नी पूरा इंजर्ड हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने डॉक्टर को दिखाया, उस टाइम ठीक था। लेकिन सर अभी पिछले 3 से 4 दिनों से, लाइक जब शाम होती है सनसेट के बाद में, जैसे सर्दी तेज होती है, राइट नी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। पापा थोड़ा मतलब एक्यूप्रेशर वगैरह जानते हैं, तो पापा थोड़ा एक्यूप्रेशर वगैरह करते हैं। मम्मी तेल तेल मालिश भी हुआ थोड़ा, लेकिन सर उतना कुछ रिलीफ नहीं है। एक्सरे करवाया है, लेकिन अभी उसका रिपोर्ट नहीं आया है। तो सर आप कुछ बता पाए तो। आप कुछ मत कीजिए, यू हैव अ विक्स। विक्स है, हाँ हाँ सर, वीक्स है। विक्स को लेना, उसको मसाज करना, और गर्म पानी का एक पैड लेना, कपड़ा, हाँ हाँ उसको बांध देना थोड़ी देर के लिए हल्के से। हाँ। ठीक है तो सर। इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन कट डाउन करेगा, ठीक है, हाँ सप्लाई सर। को इम्प्रूव करेगा। सेकेंडली, एक न्यू रिलैक्स एमआर आता है, एक टैबलेट, हाँ सर, 1 मिनट में नाम लिख लेता हूँ सर। न्यू रिलैक्स एमआर, हाँ सर। न्यू रिलैक्स एमआर। मेरी सॉरी, मेरे स्टाफ पूछ रहे थे घर जाना तो जाओ, सॉरी 1 मिनट, वैसे घर चले जाओ, घर जाओ। अरे जाओ। हाँ बोलो। न्यू हाँ सर। रिलैक्स एमआर। जी किसी सर। को क्रैम्प हो जाए, किसी को भी चोट लग जाए, नस चढ़ जाए, मसल्स क्रैम्प हो जाए, तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को छोड़ दो प्लीज। वो नहीं तो आपका एक्सरे टॉक्सरे पूरा सब कुछ पैसे निकालेगा, निकलेगा कुछ नहीं, बोलेगा स्पाज में ठीक हो जाएगा, 4 दिन के बाद रेस्ट करो। न्यू रिलैक्स एमआर टैबलेट आता है, न्यू रिलैक्स एमआर 4 mg, 8 mg नहीं, 4 mg लेना। उसके पहले अच्छे से खाना खाना, फिर जी सर। एसीलॉक 150 mg लेना, एसीलॉक। एसी लॉक। हाँ 150 mg, वो आपको गैस्ट्राइटिस होने से रोकेगा। ये दवाई गैस्ट्राइटिस लाता है, जी सिंगल सर। दवाई में ठीक हो जाओगे, दर्द वर्द सब ठीक हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। और लेवेंडर ऑयल, काठमांडू में एरोमेटिक ऑयल मिलता है, लेवेंडर ऑयल लेके एक हाँ ड्रॉप, एक कोकोनट ऑयल के 2 ड्रॉप में मिक्स करके मसाज करो हल्के हाथ से, हाँ। ठीक है सर। ठीक है। हाँ आपको जी, एक और मेरे। चीज बता दूं बच्चों की, गैस्ट्राइटिस होता है रात को। हम डॉक्टर कैसे फिश मार्केट चलाते हैं देखिए। आरिफ को सपोज एक दिन रात को गैस्ट्राइटिस हुआ, खाना खाया, अकेले सो गया, गैस्ट्राइटिस हुआ और एकदम से गैस यहाँ आ गया, और उसको रात को एकदम से याद आया हार्ट अटैक हो रहा है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया कि यार मैं तो मरने वाला हूँ, तू बता तेरी इच्छा क्या है, ठीक है। तो उस टेंशन में वो लड़की क्या बोले कि अपन हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल घर वाले भी ले गए, सामने गए डॉक्टर के पास, कहाँ दर्द हो रहा है सर, यही दर्द हो रहा है, बस यही दर्द हो रहा है। वो भूल जाएगा पेट से आया है ये दर्द। डॉक्टर ने ईसीजी किया और आराम से देखा, ईसीजी अच्छा, इनको तो आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से कार्डियक फिजिशियन को बुलाना पड़ेगा, उनको कल आएंगे, 1000 रुपए उनको देना पड़ेगा। अब मर रहा है अरीब, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, भैया बुलाओ, सबको बुलाओ, यमराज को भी बुला लो जो ट्रीटमेंट देता है, और बिल निकालेगा दूसरे दिन 1 लाख रुपए का। प्लीज ये गलती मत करना, आपके पास टाइम रहता है, वो गैस्ट्रिक पेन, हार्ट अटैक पेन से लेके हॉस्पिटल कर देगा, ठीक है। तो घर में सब लोग इकोस्प्रिन 75 mg रखो। और कोविड का एक दवाई बता दूं, टेस्ट नहीं बताता, वो टेस्ट लिख लीजिए, सॉरी मैं मिस कर गया वो टेस्ट। वो टेस्ट क्या क्या कराना चाहिए, कार्ड टेस्ट पॉजिटिव है, पीसीआर पॉजिटिव है, घर में मत बैठिए। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीपीआर, पहला टेस्ट। दूसरा इंटरल्यूकिन 6, IL-6 एंड डी डाइमर। सपोज ये दोनों, पहले वाले दोनों हाई हैं आपके काउंट्स, मतलब आप लोगों को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हो, ठीक है। मेरा इंटरल्यूकिन काउंट होना चाहिए 2.5,
लेकिन मेरा था 559.9। मेरा सीरियल रिएक्टिव प्रोटीन होना चाहिए 1 से लेके 5, लेकिन मेरा था 506। आप सोच सकते हो, मैं एक बार खड़ा होता, छींकता भी नहीं, मेरा स्वेट भी कोई छू लेता तो उसको 1000 लोग को इन्फेक्ट करता, इसलिए मैं आइसोलेट हो गया। डी डाइमर बताता है कि आपके क्लॉट बनेंगे कि नहीं। डी डाइमर यदि बड़ा है तो सबसे पहले आप अपना सीटी स्कैन कराना चालू कर दो और इकोस्प्रिन 75 mg लेना चालू कर दो। ये आपके क्लॉट को बनने नहीं देगा। और लोग जो कोविड के ठीक होके आ जाते हैं 1-2 महीने के बाद और बाद में मालूम चलता है कि हार्ट अटैक से मर गया, हार्ट अटैक से नहीं मरा है, वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से थ्रोम्बोस हो जाता है, कहीं पर भी ब्रेन में जाके अटैक जाए, हार्ट में जाके अटैक मर जाता है। हम डायग्नोस ही नहीं कर पाते, इसलिए डोंट टेक इट इजी। जो डिस्चार्ज हो गए घर में वो डी डाइमर टेस्ट करा ले। डी डाइमर यदि बड़ा हुआ है तो प्लीज 75 mg का इकोस्प्रिन लेना चालू कर दे दिन में एक बार। और आप लोग भी दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार ले लिया करो। आपके यहाँ जितने भी क्लॉट है, थिक सेल्स है, मसल ब्लड सेल्स, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, यंग बच्चों में हार्ट अटैक हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑल। तो यू हैव टू टेक दिस 3 टेस्ट। पहले बोला सी रिएक्टिव प्रोटीन, दूसरा इंटरल्यूकिन 6 और डी डाइमर, ये टेस्ट करा ले। HRCT एक प्लेन सीटी स्कैन होता है, वो करा ले। और उसका सीटी काउंट होता है एटलीस्ट वो सीटी काउंट 1 के नीचे आए या 0 हो। ठीक है, 15 के ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होता है। ये सब स्कोरिंग करा लेना चाहिए, जिनके पास पैसे हैं वो करवा लेना चाहिए। और इकोस्प्रिन इज वन ऑफ द बेस्ट। और जो हार्ट अटैक वाला इशू बता रहा हूँ कि अरे ऐसे गैस्ट्राइटिस हुआ और डॉक्टर के पास जा रहे हो, कुछ मत करो। फ्रिज में ठंडा दूध होता है, यदि आपके घर में ठंडा दूध नहीं है फ्रिज में, तो पड़ोस का दरवाजा नॉक करो कि आपके घर में फ्रीजर में ठंडा दूध रखा है कि नहीं। रखा हुआ, मलाई हटाना, आधा ग्लास लेना, एक सांस में सिप कर ले, एक सांस में, आपको पूरा गैस्ट्राइटिस ठीक कर देगा। और घर में एसिलॉक 150 रखिए हमेशा, इकोस्प्रिन 75 mg रखिए। हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स, सबसे इकोस्प्रिन लेके आप डॉक्टर के पास जाओगे, एकदम से ठीक हो जाएगा। गॉट इट? जब तक डॉक्टर के पास जाओगे हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा। माय डैड एक्सपायर ऑन 10th of May। उनका 13वीं का पूजा था, कोविड-19 के क्लोज डाउन के कारण किसी को हमने इनवाइट नहीं किया था। 7-8 लोग जो कंधा दिए थे उन्हीं को आए थे, उन्हीं को खाना ब्राह्मण भोग में 2 ब्राह्मण को बुला के दे दिया। बाकी जानवरों को, पुलिस वालों को खाना खिलाया था हमने जा जाके। सेम रात को दीदी ने, पापा को चना पसंद था तो छोले बने थे, तो देसी चना, एंड वो खाया, गैस्ट्राइटिस हुआ। 11 बजे दीदी को पेन उठा, आई वेंट टू डॉक्टर। सामने डॉक्टर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। यदि मैं नहीं होता मेरी दीदी को मार डालते। इसलिए डॉक्टर के सामने आप पपेट नहीं बना। हम लोग इडियट हैं, हम लोग के सामने पपेट मत बनिए आप लोग, प्लीज। हाथ जोड़ रहा हूं, खुद का दिमाग भी लगाइए कि हमें क्या करना है। मैं गैस्ट्राइटिस हो रहा है करके पेंटॉप 40 का इंजेक्शन लेके आया, 1 इंजेक्शन, लेकिन दीदी को 2 इंजेक्शन दिया गया। मेरा वाला इंजेक्शन राइट एप्रन में रख दिया जेब में, और 2 इंजेक्शन यहां से निकाला, दोनों को तोड़ा, लगाया। पहला इंजेक्शन डालते साथ दीदी को गरम गरम लगा, दूसरे इंजेक्शन में दीदी को हार्ट अटैक की फीलिंग आई। दीदी ने चिल्लाया, मैं भागा अंदर, बोलती राजू मेरे को ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कितने इंजेक्शन लगे हैं तेरे को? बोलते 2। मतलब 2 क्यों लगे? डॉक्टर से चिल्ला रहा हूँ मैं रात को 1 बजे कि दीदी को वो दे दो, एविल दे दो, रिएक्शन हो रहा है। नहीं दिया। मैं काउंटर में गया, जिद करके 2 थप्पड़ देके एविल का टैबलेट लिया। मैंने दीदी बस अभी नर्वस नहीं होना, ये दवाई मुंह में डाल ले बस। दीदी ने लिया, 15 मिनट में दीदी का रिएक्शन ठीक हुआ। और डॉक्टर क्या बोलता है, सर अभी कार्डियक सर्जन को बुलाना पड़ेगा, हार्ट अटैक आ गया, वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा आपकी दीदी को। क्योंकि वहां पर कोविड के चक्कर में कोई भी पेशेंट नहीं था, हम ही मिले उनको। वो डॉक्टर को नहीं मालूम था मैं डॉक्टर हूं। जब सिस्टर ने मुझे देखा तो उसने इशारा किया उसको, फिर बात दूध का दूध पानी का पानी कर दी। दिस इज व्हाट द लाइफ। तो प्लीज डोंट बिकम अ पपेट इन फ्रंट ऑफ योर डॉक्टर्स। ठीक है, डोंट बी अ गूगल डॉक्टर ऑल्सो। गूगल पढ़ के डॉक्टर के पास मत जाना, स्वयं का ज्ञान लेके जाना, अदरवाइज मत जाना। मैंने बता दिया, रात को गैस्ट्रिक पेन होता है, हार्ट अटैक जैसा लगता है, आप रिलैक्स हो जाओ, पर टेंशन न हो। फ्रिज में जाके ठंडा दूध पी लो, ऐसी लॉक है, ऐसी लॉक खोलो, फटाक से कपड़े पहनो, डॉक्टर के पास रश करो, 75 mg का इकोस्प्रिन ले लो पहले। ठीक है, लिक्विड डाइल्यूटेड ब्लड से हार्ट अटैक नहीं आएगा। ठीक है,
थिक ब्लड से आएगा, तो थिक ब्लड को डाइल्यूट कीजिए, जब तक जाओगे ठीक हो जाएगा। ईसीजी रिपोर्ट आप पढ़ नहीं सकते, और डॉक्टर ऐसे करके ईसीजी रिपोर्ट पढ़ता है, उसमें होता है हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, घर वाला नर्वस हो जाता है, चलिए सर आईसीयू में एडमिट कर दीजिए। प्लीज डोंट बी गेट पैनिक। सेम थिंग विथ कोविड-19 ऑल्सो, ठीक है। और पूछो बच्चों। यस, सॉरी मैं बहुत सारी बातें बोल लेता हूँ। नहीं सर, इट इज लाइक बहुत जरूरी है द ट्रूथ, वी शुड आल्सो बी अवेयर अबाउट द ट्रूथ ना। These are certain things जो कभी कोई बताता नहीं है, और हमें शायद कभी पता भी नहीं चलेंगे being a common man. जी। So of course. और एक और चीज बता रहा हूँ, कभी भी रीकुक खाना मत खाना। खाना बन गया है, ठंड का टाइम है, खाना बिल्कुल ठंडा होगा, प्लीज हैव इट, ठंडा खा लेना, उसको रीकुक मत करना। वो मैक्सिमम कैंसर कॉसिंग, इनफर्टिलिटी कॉसिंग के एजेंट दे देता शरीर। हम बोलते हैं ना कि हमने सिगरेट नहीं पिया, शराब नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाया, फिर भी कैंसर क्यों? हे भगवान, मुझे कैंसर क्यों दिया? क्योंकि हम रात को बराबर गर्म करके खाना खाते हैं। वी शुड नेवर रीकुक फूड। है समझ में? हमें कभी भी रीकुक फूड नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। और चाइनीज खाना का प्लीज बहिष्कार कर दो, नहीं तो उम्र भर पछताओगे। मेरे पास इतने सारे यंगस्टर हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे। मोनोसोडियम ग्लूटामेट आर द मेन कॉजेटिव फैक्टर। कल ही मैंने मेरा एक LIC एजेंट है बेचारा, आई वाज वेरी कंसर्न विद मी। होम लोन लिया था तो रोने लगा, सर अपन जल्दी खत्म करेंगे। तो मेरे को भी भूख लग रही थी, वी वेंट फॉर मावा बाटी और कुछ, तो उन्होंने बोला सर फ्राइड राइस हमारा बहुत अच्छा है। मैंने बुलाया इधर आ, मतलब एक दाना भी मुझे मिल गया अजीनोमोटो का, तेरा पेमेंट नहीं करूंगा। लिटरली उसने बिना अजीनोमोटो के दाना, और फिर मेरे को बोलता है सर मुझे मालूम है सर ब्लड कैंसर होता है। द नेपाली फेलो इज सेइंग मी कि सर इससे ब्लड कैंसर होता है, मैं भी नहीं खाता हूँ, लेकिन बनाता है वो, लोगों को देता है। यदि मैं सिगरेट के लिए रोकता हूँ बिकॉज आई डोंट स्मोक, आई हैव राइट टू से कि डोंट स्मोक, लेकिन आप नहीं करते हो, दूसरे वाले को करवा रहे हो, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। मैं स्वीडन में था, वहां पर भी सब होटल वाले जानते थे मुझे, ये डॉक्टर अजीनोमोटो नहीं खाएगा, बिल पेमेंट नहीं करेगा, तो नहीं देते थे। चलिए अविनाश, तुम अच्छे लग रहे हो। मम्मा डैडी सबको मेरा नमस्ते बोलना घर में। हाँ जी सर, जरूर सर। बोलिए। Once again highlighting the points, CPR, IL-6 and D-dimer का टेस्ट फॉर कोविड। सर ये सारे क्वेश्चन सुन के ना मेरे अंदर का एक क्वेश्चन जाग गया, विच आई हैव बीन थिंकिंग कि मैं किसी डॉक्टर को कंसल्ट करूंगी, बट मुझे ना जब तक लगता नहीं है कि वो मेरे दिल की बात बोल रहा है तब तक बिलीव नहीं होता उस पे, इसलिए आई हैवंट कंसल्टेड एनीवन येट। सर मेरे ना लेफ्ट हैंड में लाइक हर बार प्रॉब्लम होती है, यू कैन आल्सो सी ऑन द वीडियो कॉल, ये बम्प या मतलब इसको प्रेस करने से ऐसा फील होता है एज इफ इट इज अ आउटग्रोथ ऑफ अ बोन, पर बोन नहीं है ये, मतलब आई डोंट फील कि ये बोन है, बट स्ट्रेंथ उतनी बोन जैसी है, और हाथ में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, लाइक आई कैन नॉट इवन होल्ड अ कॉफी मग विद माय लेफ्ट हैंड। इट इज अ गैंग्लियन, आपके दो वेन को कंप्रेस कर, जनरली वो यहाँ आता है, लेकिन आपका यहाँ पर है, वो विच आई नोटिस, ठीक है। ये कंप्रेस करा इसलिए होल्डिंग है, उसको एक अच्छे सर्जन से मिलके गेट रिड ऑफ, नहीं तो पाम क्लफ आता है, एक छेद होता है, एक बैंड होता है, उसको टाइटली बांध करके सोया करो, वो कंप्रेस होगा। मेरे को यहाँ था बहुत बड़ा था, नहीं है, 15 दिन में ठीक कर दिया मैंने। मेरे को बोला था ऑपरेशन करा लो, मैं एम्ब्रॉयडरी करता हूँ, सिलाई, मैं फैशन डिजाइनिंग का काम करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ बहुत अच्छा, मैं रंगोली करता हूँ, नेशनल जज हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, तो मतलब साले सब लोग मेरा हाथ ही काट काम लगा देंगे, मतलब नहीं। आई प्रिपेयर्ड माय सेल्फ, बट यू हैव दिस प्लेस, तो बेटर यू कंसल्ट, टेक अ स्कैन, सोनोग्राफी करा ले, वो रिपोर्ट मुझे भेज दे, फिर मैं बताऊंगा करना क्या है ना बेटा। सब डॉक्टर गंदे नहीं होते। नहीं सर, इसलिए आपसे पूछा, और पूछा अभी तक पूछा नहीं, बिकॉज आई फेल्ट दैट आई कुड नो द ट्रूथ हियर ओनली। There are many, million genuine doctors are there in India, million. सर हाँ विनाश। सर वन मोर क्वेश्चन सर, एक्चुअली मेरी मम्मी का प्रॉब्लम था थोड़ा, अभी मम्मी आई थी तो बता के मामा को बुलाओ, मामा को नमस्ते करेंगे। मम्मी
ये बोल लो। हाँ सर, हियर इज मॉम। नमस्ते सर। चरण स्पर्श, कैसे हैं आप? ठीक है, बोले। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि बारिश के टाइम में ना मेरे एक हाथ में और एक पैर में दर्द रहता है, और जो पैरों की पसलियों में ना वो जलन रहती है मात्र बारिश के टाइम में। जलन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा फटाक से। कुछ नहीं करना है आपको, 3 मग पानी से एड़ी को धोना चाहिए, एड़ी में डाल के पानी। रात को सोते हैं तो अपन आगे डाल के पाँव धोते हैं, पाँव हाँ, धो लेते हैं और एड़ी से कस कस के पानी दे रहे 3 मग, ठीक है। और अच्छा। आप तकिया लगाना बंद कर दें। मुझे लगता है ये रेडिएटेड पेन है आपको, स्पॉन्डिलाइटिस का। जो आप लेफ्ट साइड का पेन बताते हैं वो रेडिएटेड पेन है, तो स्पॉन्डिलाइटिस होगा। आप एक्सरे कराएंगे तो मिल जाएगा। तो आपका मस्कुलिन क्लॉथ होता है, जो रुमाल होता है ना, या दुपट्टे को, कपड़े को, कॉटन के कपड़े को ऐसे फोल्ड कर ले, ठीक है। जी, फोल्ड हो गया, और सोते वक्त यहाँ रख के सो, अच्छा, नहीं यहाँ हाँ। करके देखिए, ठीक है। तो ठीक काफी है। आराम मिलेगा आपको। फिर नहीं होता तो अपन कांटेक्ट करेंगे, बच्चे के पास मेरा नंबर है, तो विल सॉल्व, ठीक है। थैंक यू सर। आज खाने में क्या बना है अविनाश? सर राजमा चावल। अरे मेरे को दे यार। सर आ जाइए यहाँ पे, कभी काठमांडू आइए सर, अच्छा सिटी है। मैं राजमा चावल का आपको एक और हिंट दे दूं, पता नहीं मेरे को खुजली हो रही थी ब्रेन में। मसूर की दाल और राजमा कैंसर पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। हाँ सर, इसका भी ध्यान रखेंगे। जिनको गठान होता है, जिनको लंप होते हैं, उनको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड होता है एंजाइम फाइटोहीमोएग्लूटिनिन और लैक्टिन्स, जिस सेल को मल्टीप्लाई करते हैं। माइटोजन एक्टिविटी होती है इसमें, माइटोजेंस होते हैं ये राजमा से, रेड किडनी बीन से, और लैक्टिन्स, लेंटिल से, लेंटिल मतलब मसूर, इससे निकलता है लैक्टिन्स। तो पीएचए और लैक्टिन्स दोनों ही माइटोजन होते हैं, इसलिए हमें कैंसर पेशेंट को ये खाना नहीं देना चाहिए। आगे चलो। I really wish that we could just go on and go on with the session. No, it is so interesting and so informative. I am just loving it. But with this, we come to the end of the session. Thank you नहीं, so एंड नहीं करो अभी, एक और चीज आ गई यार, सॉरी सॉरी। बहुत सारी बेटियां लोग होंगी इंडिया में, बहुत सारे ग्रुप में आपके लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, जिनको पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। मेंसेस नहीं होता, जिनको मेंसेस रुक रुक के होता है, ब्लीड, पेनफुल ब्लीड होता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा डाइट है, प्लीज कर लो, ठीक है। पहले तो मेंसेस के पेन में कभी भी दवाई नहीं खाना, ठीक है। ड्रम स्टिक देखा, ड्रम स्टिक, मुनगा, सजन की फली, उसके पत्ती का जूस निकालो 2 चम्मच, पत्ती से जो जूस निकल जाए 2 चम्मच वो पी लो, तो क्रैम्प ठीक हो जाता है। नहीं तो ठंडा और गर्म पानी का बॉटल रखो, 2 राउंड ठंडा पानी का पेट में, 2 राउंड गर्म पानी का, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। करवट बदल करके, जिस जगह दर्द है, जिस साइड का दर्द है, उस साइड को ऊपर रख के करवट बदल ले, और दोनों घुटने को हाथ से पकड़ के पेट की तरफ खींचे, 1 2 3 4 5, फिर रिलीज कर दे, फिर 1 2 3 4 5, फिर रिलीज कर दे। मेंसेस का पेन नहीं होगा, ठीक है। पेन किलर खाने से किडनी डैमेज होता है और प्राइमरी इनफर्टिलिटी कॉज हो जाता है, इसलिए कभी पेन किलर नहीं खाना है। दूसरा चीज, ऑलिव का फल, जैतून का फल आता है ब्लैक एंड ग्रीन, वो टिंड होता है, लिक्विड में होता है, एक सुबह एक शाम को पानी में निकाल के घोल लें, उसका खट्टापन निकल जाएगा, सिरप, और फिर उसको दही के साथ, चावल के साथ, जैसे खाना वैसे खा लीजिए। जिनके ओवरी डैमेज है वो रिपेयर हो जाएंगे, जिनके ओवन मैच्योर नहीं हो रहे वो मैच्योर होना चालू हो जाएंगे। और पियर, जो नाशपाती होता है ऐसा फनल शेप का, वो डेली एक खाना चाहिए, काट के नहीं। उसका पेडिंकल तोड़ दें, धो लें अच्छे से, और पेडिंकल वाली साइड से खाए, और उसका बीज फेंकते रहे। बीज में साइनाइड होता है, इसलिए बीज को नहीं खाना चाहिए, किडनी डैमेज करता है। एप्पल के बीज को, स्टोन फ्रूट के बीज को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फिर खा ले, रोज 31 दिन ले लीजिए, यूट्रस मेंटेन हो जाएगा और आपका ओवरी भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। टाइट ड्रेसेस बच्चों को नहीं पहनना चाहिए, 3 से 4 घंटे के बाद टाइट आउटफिट्स को लूज कर देना चाहिए। इससे इनफर्टिलिटी होता ही होता है, ओवरियन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और पीनियल कैंसर भी होता है।
रिपोर्टेड है, प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। तो प्लीज टाइट आउटफिट्स नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। कंक्लूड कर दो, भगा दो मुझे। Thank you so much, sir. We are really obliged to have a lively spirit like you, full of knowledge and motivation. Thank you Thank you. so much, sir. I hope that all of our audience questions were also they could get the answers to their questions. ये आप लोग के लिए, फॉर यू ऑल। Thank you so much, sir. अरे स्पेशली फॉर यू। चल। With this, I would like to say that though the lockdown is over, but the pandemic isn't over yet. So take care and stay safe. थैंक यू। Thank you so much, everyone. बाय बाय। Bye, sir.